वेलकम एवरीवन, है ना, टू दिस आर डाउट सॉल्विंग सेशन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एज पर द फॉर्मेट. जो हैंड रेज हुए हैं उस ऑर्डर में, है ना. तो एज पर द रूल जो कंप्लीट प्रेडिक्शन वाले हैं, यू प्लीज़ जिन्होंने एनरोल किया है आपको डाउट्स नहीं पूछने, है ना, बिकॉज ये आपको वैसे भी टाइम वहाँ पे काफ़ी मिल जाता है. तो इफ़ यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज़ लोअर योर हैंड, है ना, सो दैट बाकी लोगों को है वहाँ पे वी कैन गिव दैट चांस. ठीक है. सो अपना नाम बताइएगा एंड प्लीज़ कीप इट शॉर्ट सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सके. ठीक है. ओके. तो आई विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस. यस, अनथु जी. Hi, sir. How are you? Are you all right? Yes, I am good. Okay. Sir, my doubt is actually about option whether to select buy or sell. Okay. Sir, can you please go to Bank Nifty on 4th so that I can explain it with that example? Which one? Bank Nifty on 4th so that I Okay, can okay. explain with the Yes, example. sure. Yeah. Yes, please. So Sir, 4th, you're saying? 4th, yes. 4th October, yesterday. Okay, got it. Yeah. So actually we had a RABB setup right there. Okay, we'll go to 15 minutes. Yeah, 15 Yes, minutes. but here volume was not there, right? So Yeah, volume was not there. Yes, we'll yes. go over here for Bank Nifty chart where the volume is there. So that was the issue yesterday, and that was the same issue today also. Today. Yeah. Correct. Sir, actually my doubt is, suppose if there was volume, okay, we'll consider if there was volume also. In this situation, actually, my plan was to buy a put, okay? Okay. But it was trading below previous day VWAP. Then Correct, I right. thought of selling a call. But calls were trading above previous day VWAP. Correct. Sir, in such situation, which will be the best practice? Yes. In this situation, obviously, if calls are trading above previous day VWAP, right? Yes. And you are getting a sell signal, so this will reward you more because since the buyers, they will exit more faster, right? Because in a way, let's say the market, the put sellers are not only intraday, right? The put sellers, they are those who have sold put yesterday, they are also making good profits over here. Correct? Yeah. So they are making good profits. So they won't exit that easily. So if the puts are below previous day VWAP, and it means that a market, if it stalls, it will again come down very quickly. Right? Okay. So in this case, always better that if the option are below previous day VWAP, right? Then it is more recommended that you can sell the option which is above the previous day VWAP or near to it because it will fall more comparatively. Right? Okay. Now, if the momentum continues, when will the puts give spike? If it starts moving below previous day high, then the puts will start moving with that much intensity, right? But till that time, but even if the market goes sideways over here, what you will see, the calls will fall much faster. I'll give you the same example. Let us take an example of today also, right? Okay. What has happened? Market is above previous day VWAP. Now, this is a fake move, as we can see, a trap because no volume was there. No volume. So you shouldn't buy. Simple, you shouldn't buy because if it's a WRC, the volume. अच्छा, हिंदी में भी मैं रिपीट करूँगा, जो वॉल्यूम नहीं है वहाँ पे, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्केट इज नॉट काइंड ऑफ द पार्टिसिपेशन इज नॉट क्लियर, राइट? सिर्फ कैंडल बना दी उसने. सो इट मीन्स दैट इफ देर इज अ लो वॉल्यूम, देर इज अ वेरी हाई चांस कि इफ द मार्केट उसको नहीं फॉलो थ्रू दे रहा है, मीन्स इफ इट इज नॉट एबल टू गो अप, देर विल बी अ रिवर्सल बिकॉज people generally either jump by looking only at good candle or they'll jump either by looking at a very high volume. One of the two cases what happens, right? Over here, but we need both. Over here the volume was not there. In fact, it is very lesser than the what was the there in range, right? So you have to ignore it. In this case, now we will take an example of, let's say, we will take call example, right?
अ कॉल दिस वाज ट्रेडिंग अबाउट प्रीवियस डे वीवैप, ये भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा था. ये जब गिरा तो ये अच्छे से अराउंड 200 पॉइंट्स, मतलब 5, लेट अस से हाई इसका 570 के अराउंड, एंड इट मेड अ लो ऑफ अराउंड ऑफ अराउंड 350. बस मोटा मोटा लेट अस टेक ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट्स, right? 200. Yeah. 39,500 is nearly at the money, so we'll take 39,500 put of 13th October. Here you can see Mhm. that from around 430 onwards, around 420 onwards, it has come to around 600. Means 600. the fall, the rise of this put was 20 points lesser nearly than the fall of the calls. More or less, kind of a, even though on if the market was below day low, the calls wouldn't have fallen faster, but because in a way you can see initially the calls fell faster till here, right? Right. Oh, you can compare from till this duration and puts till this. The puts were a little bit slow to catch up. Afterwards, then when the market started falling below this area, which is 39,400 around, then the puts started giving a little bit, इट स्टार्टेड राइजिंग अ लिटिल बिट, तब वो ज़्यादा राइज हुआ. यहाँ तक जो है तब तक सिर्फ कॉल्स ज़्यादा वैल्यू लूज करेंगे. सो अगर प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर कोई भी ऑप्शन है और वहाँ पे मार्केट अगर स्टॉल हो रहा है, राइट, सो ऐसे केस में उसका जो राइज है वो बहुत जल्दी मतलब रिट्रेस हो जाता है. तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आपके पास कैपिटल है, राइट, तो उस केस में यू शुड गो फॉर सेलिंग rather than buying, because the markets, the put option is below previous day view, right? Yes. सेकेंड केस, तो उसमें जो नेक्स्ट केस रहेगा कि इफ यू डोंट हैव कैपिटल, जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो क्या करेंगे ऐसे केस में? दे कैन मेक कॉल क्रेडिट, राइट? आप कॉल क्रेडिट बनाओ रादर देन पुट डेबिट, राइट? तो उसमें कैसा रहेगा? जो कॉल क्रेडिट रहेगा, बिकॉज उसमें वैल्यू वो फास्ट लूज करेगा. अगर मार्केट यार साइडवेज भी जाता था तो ये जो है this would have also gone sideways, or it would have retraced a little bit, but this would have ended near to day low, because kind of the sellers would have come with more confidence, because they are finding the market has given a trap, right? A market has given a trap, so even if it goes sideways, they'll be confident of selling, right? But over here the market has given a trap, but the put buyer will be confident of buying only if it breaks below this zone, which is 39,400, right. so that is the वो दो चीजें मतलब आपका मेन रहता है कि प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर अगर रहता है तो बेटर है कि आप सेलिंग या क्रेडिट बनाओ, और अगर प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर तो बाइंग ही करनी है ना? Yeah, sir. When suppose I'm going to sell, which strike would be better, sir? ATM or OTM? नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो डिपेंड्स ऑन योर हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक. जैसे एटीएम पे करोगे एंड यू आर टेकिंग अ डिस्टेंस इन क्रेडिट ऑफ 500 पॉइंट्स, सो you know कि if I am selling, then the day high, around day high above, that would be my stop loss, right, in the index. So right. you know that okay, it is for around 500 and this is around 550, so 50 points. So if you are comfortable with 50 points as per the capital, you can do naked also, right? Okay. So if you are saying no, 50 points is मेरा रिस्क ज़्यादा है, तो फिर मैं क्या करूँगा उसमें कि आपको फिर हेज करना पड़ेगा. हेज मतलब 500 पॉइंट्स मीन्स 39,500 कॉल सेल एंड 40,000 कॉल बाय, राइट? वो आपने किया तो एक तरीके से वो रिस्क कम हो जाएगा, 30 पॉइंट्स का हो जाएगा, राइट? सेम रिस्क अराउंड. सो वो चीज़ डिपेंड करेगी आपके रिस्क कैपिटल कितना है उस पर डिपेंड करेगा. इफ योर कैपिटल आपका अगर लेट से कम है, 50,000 या उससे कम है, तो आपको क्रेडिट ही बनाना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू नेकेड, नहीं कर सकते हो, है ना? आपका कैपिटल इफ इट्स अराउंड 1 लाख या 2 लाख है, तो फिर आप नेकेड, यू कैन डू नेकेड ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे अराउंड 4,000 वी कैन टेक रिस्क मैक्सिमम. अगर हमारा 1 लाख कैपिटल है, 4% ऑफ कैपिटल, तो 50 इंटू 50 100, 2 लॉट भी कर लिया तो भी मैक्सिमम रिस्क इज अराउंड 2,500 रुपये, 2,500 से 3,000. सो इट इज विद इन द रिस्क एपेटाइट. सो 2 लॉट्स वी कैन डू नेकेड ऑल्सो, राइट? Okay. ठीक है, चलिए, थैंक यू. Okay. All right, sir. Thank you, sir. Thank you. यस, ओमकार जी.
हेलो। हाँ ओमकार जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। सर मेरा मेरा डाउट था 26 सितंबर के रिगार्डिंग, अगर आप टीसीएस का चार्ट देखेंगे तो। अच्छा सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे मतलब ट्रेड अगर लेना होता है, हाँ बिकॉज मूव थोड़े बड़े थे उस दिन तो। यस यस। नहीं ये देखना, आपका बेस बिल्डिंग हो गया, आपका मिनिमम जो रोल है उसके हिसाब से उसने जो काम किया है वो हमें देखना है। ये आपका जो बेस बिल्डिंग हुआ है 1 2 3 4 मिनिमम 4 कैंडल्स, वॉल्यूम डिप वहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिप हुआ है मिनिमम 4 कैंडल्स, तो आपका छोटी बॉडी वाले हो गए। और उसके बाद वो ब्रेकआउट निकल रहा है वहाँ पे, राइट। तो ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर देन आपका इसके नीचे एस एल एंड बाय करके फिर आपका एक स्पेस भी अच्छा है, तो सीधा ये वाला एरिया पीडीएल के अराउंड ही है। जो टारगेट रहेगा वहाँ पे ये गैप फिल करने आएगा वो, अगर ये ट्रैप कर रहा है तो ये आपका टारगेट 1 हो गया, ये वाला जोन। और उसके बाद फिर जो भी हमारे हेकेनाशी में आप देख सकते हो, है ना, हेकेनाशी में अपना 26 पे हम जाएंगे, तो पीडीएल के बाद ऊपर उसके पास सीधा ये वाला जोन है वैसे, टीडीएस राइट। पे गया। हाँ कुछ है नहीं, क्योंकि वो उस एक दिन पहले गिरा भी, वो बहुत कंटिन्यूस था वहाँ पे, डे लो पे एंड किया था। तो अगर इसने यहाँ पे इसको पीडीएल के बाद चले गया तो उसके बाद हम कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे, मतलब ये सॉरी, कॉस्ट पे आप बाकी क्वांटिटी डाल दी, तो दिस इज द राइट टारगेट टू, तो वो उसने फिर अचीव कर लिया। सर, but in this scenario, because I have asked the same kind of doubt earlier as well, हम्म। when the breakout candle is actually reaching the PDL itself, मतलब हाँ जो हाँ ब्रेकआउट दे रही है कैंडल वो इसमें भी पीडीएल पे गई है, तो आपने बोला था कि ऐसे सिचुएशन में जब ब्रेकआउट कैंडल ही पीडीएल तक पहुंच जाती है तो हम लोग यूजुअली ट्रेड अवॉइड कर सकते ना लेना। और हाँ। आपने देखे कि पीडीएल पे थोड़ा स्टॉल भी नहीं नहीं, होके ये फिर आपका वो ऊपर। आपका एंट्री जो है वो आप यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है ना, देखिए ना, रेंज से ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो यहीं पे एंट्री आपकी हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ ये तो डब्ल्यू आर सी नहीं है और ना ही ये आरईबी दिख रहा है। नहीं, इसमें आपका सिंपल चीज़ है, आरईबीबी नहीं, आपका आरईबीबी ऐसे नहीं कि 11 बजे के बाद ही आपको करना है, आपका एंट्री 11 के पहले भी मिल सकती है, राइट, नहीं सर, लेकिन इन सम ये सेटअप सिनेरियो। दिख नहीं रहा ना वैसा। क्योंकि इसमें देखो डब्ल्यू आर सी मतलब उसका क्या है कि जो कैंडल है वो एक क्लीन कैंडल है, ऊपर की तरफ वो पुश कर रहा है, राइट, दैट इज फाइन। सेकेंड जो चीज़ है, जो रेंज से ज़्यादा है, जो ये 4 कैंडल्स है, उसके कंपेरेटिवली उसका वॉल्यूम वहाँ पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ रहती है कि सेक्टर देख लीजिए फिर, अब जैसे सेक्टर है, अब आईटी सेक्टर उस टाइम कैसे कर रहा था, अगर ये आईटी सेक्टर भी 26 को निकल रहा है तो फिर तो उसको अपने को छोड़ना नहीं है, देखिए, राइट। सेक्टर देखिए वहाँ पे, करेक्ट, राइट राइट। सर। सेक्टर निकल रहा है तो वो तो फिर थोड़ा सा हल्का सा लैग कर रहा है, बट सेक्टर के सपोर्ट से तो उतना 19 20, अब वहाँ पे क्या है कि उसने ब्रेकआउट किया, अब वहाँ पे लगेगा अरे यार ये ब्रेकआउट जस्ट वहाँ पे हुआ है वहाँ, बट इसीलिए सेक्टर हम देखते हैं ना कभी भी स्टॉक ट्रेड करते हैं, तो राइट सेक्टर सर। ने दे दिया ना, तो आपका ट्रेड वहाँ पे फिर लेना ही है, क्योंकि उसमें है कि वॉल्यूम भी अच्छा है, सेक्टर भी क्लीन, सेक्टर की डब्ल्यू भी क्लीन है, तो वहाँ पे एक तरीके से वो सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव हो रहा है ना। अगर चलो, अगर अगर टीसीएस पे लग रहा है कि डाउट है, तो उसमें हम दूसरा स्टॉक भी तो है ना, सिर्फ हमारे पास एक ही स्टॉक थोड़ी है, राइट। अब इसने क्या राइट किया, 26 को आपका जो इन्फोसिस है, राइट, इन्फोसिस ने फिर यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट दिया है, तो LN15 के बाद इन्फोसिस यू कैन बाय, करेक्ट, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक क्या है, टेकेम है 26 को, राइट। अब जो सर। टेकेम है, टेकेम ने भी फिर 11-15 को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये भी पीडीएल पे बेस बिल्डिंग कर रहा था, राइट। तो हाँ बाकी के दोनों स्टॉक ने भी किया है आपका, है ना। अगर वहाँ पे टीसीएस पीडीएल पे लग रहा है, या फिर जो पहले वाली कैंडल जो डिस्कस की वहाँ पे हमें लग रहा है नहीं बाय नहीं करना है, बट वहाँ बाय कर सकते हो, क्योंकि सेक्टर ने बहुत, तो उसने पूरा पूरा सपोर्ट दिया है ना, राइट। लेकिन टीसीएस में सर, सिंस वो गैप डाउन को और वो रियल गैप थी उस दिन, हाँ तो तो ये वो हम लोग गैप। गैप फिल तो आपका होगा ही, फिर अगर रियल गैप है और रिवर्सल दे रहा है तो नियरली वो गैप फिल करने तो आता ही आता है फिर, यार तो यहाँ वो पे। मतलब हम लोग एक फॉर टेकन ले सकते हैं क्या उस सिनेरियो में? हाँ कोई आपका देखो जो है, अगर क्लियर सेटअप, अगर सेक्टर के साथ टीसीएस मूव हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से टीसीएस भी वी कैन टेक इट इजीली, राइट। अब वॉल्यूम भी राइट था ना, अगर वॉल्यूम नहीं रहता तो आई वुड सेड चलो छोड़ दो फिर, है ना, वॉल्यूम भी था उसमें, और सेक्टर ने क्लियरली अपना एक कैंडल डब्ल्यू बनाया है, तो जो है स्टॉक ने सिर्फ 19-20 का थोड़ा सा फर्क है ना, तो वो उतना चल जाता है, कोई इतना मैटर नहीं करता है। अगर नहीं लेना है चलो ठीक है, तो बाद में फिर टेकेम और इन्फी भी ट्रिगर हो गए थे, राइट, आफ्टरवर्ड्स, तो राइट वो सर। फिर उसमें से देन यू वुड हैव टेकन, बट टीसीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज का
अगर ये जैसे रहा आप ये SBI, तो SBI ने 11:30 बजे अगर एक ब्रेकआउट दे रहा है, उसके साथ में अगर हम एक बैंक निफ्टी का एग्जाम चार्ट देखेंगे तो 11:30 बजे बैंक निफ्टी जो है वो हम देखेंगे क्या कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी रेंज में ही है, करेक्ट, 11:30 बजे, और ये हीरो निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, सेक्टर जो नहीं। PDH के ऊपर है बट सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे। तो उस केस में कैसा है कि वो अब बड़ा मूव देगा नहीं देगा, वो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, फिर डाइसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। बट IT सेक्टर में क्या है, वो सेक्टर का भी सपोर्ट आ रहा था, तो कोई टेंशन नहीं है फिर। यस बिल्कुल है ना। सेक्टर सपोर्ट इन अ सेंस यही होता है ना कि स्टॉक और सेक्टर एकदम कोरिलेशन में मूव करते हैं। कोरिलेशन में रहेगा तो आपको बड़े मूव्स, जब भी बड़े मूव्स आते हैं मैक्सिमम हाँ। टाइम वो कोरिलेशन में होता है। अगर कोरिलेशन में नहीं होता है तो अगर वहाँ पे फिर कैसे, ये इस तरीके से वो बहुत बार वर्क नहीं करेंगे फिर, है लेकिन ना। सर अगर स्टॉक या सेक्टर में से दोनों में से कोई भी एक इन अ लाइव मार्केट ना, क्योंकि हम लोग अभी ये कंप्लीटेड चार्ट्स को देख के तो बोल नहीं रहे तो हैं ना, लाइव कि मार्केट लेकिन में तो लाइव लाइव में ही देखोगे ना आप, साथ में जो 15 मिनट क्लोजिंग देखोगे तो साथ में ही दिख रहा है ना, वो तो साइड बाय साइड लेकिन यू अगर कैन उन जस्ट। दोनों में से एक दो भी लैग, थोड़ा भी एक दो कैंडल नहीं का नहीं, लैग हो लैग तो लैग वहाँ पे कैसा है कि आपको बेस्ट सेटअप्स ढूंढने हैं, है ना। हाँ आपको सर। 100 सेटअप नहीं ट्रेड करने हैं, आपको बेस्ट 40 सेटअप्स मिल रहे हैं वो ढूंढने हैं। महीने में जो भी 40-50 बेस्ट सेटअप्स मिलते हैं हमको, उसी उसी मतलब है ना, राइट। तो वैसे तो राइट 200 सेटअप्स ढूंढने जाओ फिर उसका कोई सेंस नहीं है। बट 40-50 जो बेस्ट सेटअप्स है उसमें सिंक्रोनाइज अगर नहीं है, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, अगर सेटअप अच्छा लग रहा है तो 50% क्वांटिटी में ले लो, फिर कम क्वांटिटी कर दो ना, राइट। हाँ सर। अगर तुम्हें लग रहा है स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया बट सेक्टर नहीं दे रहा है, जैसे SBI के केस में अब दे रहा है वो, अब सेक्टर अंदर ही अंदर है, वॉल्यूम अच्छा है, तो डू इट 50% क्वांटिटी। और उस केस में कैसे है, फिर रिस्क अपना जो होता है, रिस्क रिफाइन हो जाता है। कैसे, तो रिस्क हम पूरा नीचे नहीं वेट करेंगे, है ना। ये अपना रेंज के नीचे तक विल नॉट वेट फॉर एक बार रिस्क। अंदर क्यों, आ गया तो निकल जाएंगे। जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके अंदर आ गया तो निकल जाएंगे, उसके हाँ नीचे, हाँ। उसके नीचे आ गया तो अंदर नहीं, मतलब अंदर तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी मारेगा ही। जिसने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे अगर मार्केट आ गया, क्योंकि सेक्टर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो अगर ये फेल होगा तो फिर उसकी इंटेंसिटी भी बहुत फास्ट रहेगी फेल होने की, है ना। राइट सर। तो जैसे आज मैक्सिमम बैंक निफ्टी जब फेल हो तो काफ़ी सारे स्टॉक्स रिवर्सल हुए फास्ट एकदम, है ना। अब ये जो वीकेस्ट थे उनमें से जैसे कि आप ये देखो, ये वीकेस्ट HDFC बैंक सबसे वीकेस्ट था। क्यों, बैंक निफ्टी PDH के ऊपर है, HDFC बैंक PDH के नीचे है ना, बराबर। तो ये भी राइट। उसने यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक डाउन दिया। तो अब ये WRC देखो, और इस केस में जब उसने ब्रेक डाउन दिया तो बैंक निफ्टी ने भी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था उसने तभी, है ना। तो वो भी एक ट्रैप तरीके से केस हो गया कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया लो वॉल्यूम में, उसी कैंडल को उसने एंगल्फ कर लिया। तो मेन वही है कि अब वहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर यहाँ पे देख के किसी ने क्या है कि बैंक निफ्टी को देख के HDFC बैंक बाई किया या ICICI बैंक, तो फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, राइट। इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं है, सेक्टर में वॉल्यूम नहीं है। अगर आपका वो अगर उसमें है तो नहीं, फिर उसमें अगर है तो देन, अगर वॉल्यूम रहता तो देन वो सेटअप के अंदर रहता, देन अगर हम ट्रैप भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तो हम 100% सही तो नहीं हो सकते, ठीक है। सर एक छोटा सा एक डाउट था सर। इन केस ऑफ दैट TCS ट्रेड आई टोल्ड यू अबाउट, ऐसे में हम लोगों को विक्स 20 के आसपास ही चाहिए होता है अगर हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, या नहीं नहीं, नीचे भी आपको चलेगा? TCS में विक्स का, स्टॉक्स में विक्स का कोई इसका मतलब लेना देना, वो ऑप्शंस में आपका रहेगा, इंडेक्स ऑप्शंस ओके। में। अगर स्टॉक्स कर रहे हो तो स्टॉक्स में बस विक्स अगर हाई रहेगा तो उसका एक नहीं नहीं, बस, स्टॉक्स के ऑप्शंस में पूछ रहा था मैं actually। हाँ नहीं नहीं चलेगा, स्टॉक ऑप्शंस मंथली होते हैं ना। तो आपका विक्स हाँ कैसा रहेगा कि अगर इफ विक्स इज ऑल्सो लेस या हाई, तो उसमें फर्स्ट फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका हाई रहेगा विक्स तो 10 पॉइंट की जगह 13 पॉइंट मूव हो जाएगा, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे देगा, बिकॉज विक्स का सपोर्ट है। बट उसमें डीके नहीं आएगा ना, क्योंकि मंथली ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस मंथली होते हैं, तो कोई राइट। कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। वो तो आप जैसे नॉर्मल करते हैं वही है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो साइडवेज जाएगा क्या है, क्योंकि बाइंग भी जो करोगे वो एट द मनी या वहाँ से 2% दूरी करोगे तो पास में ही रहेगा वो, तो उसमें Right. कोई इशू नहीं आएगा, राइट। सिर्फ बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस का एवरीडे डीके रेट 20% होता है, तो विक्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा उसमें आता है। अगर आप बैंक निफ्टी में मंथली ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो विक्स का इम्पैक्ट जो रहेगा वो एकदम डीके पे नहीं पड़ता है, कि उसका जो रहेगा कि अगर वो
मोमेंटम आ रहा है और विक्स राइजिंग है, तो वो रहेगा कि वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे देगा सेम मूव के लिए, राइट? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बड़े रेंज में जाएगा, तो बड़े रेंज में जाएगा तो जो शॉर्ट करके रखा है उस ऑप्शन को जिन लोगों ने, वो जल्दी एग्जिट करेंगे या पैनिक करेंगे, है ना? और अगर विक्स कम जा रहा है तो कैसा है, लोग होल्ड करके रखते हैं, सेलिंग जो रहता है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट बहुत बड़े रेंज में नहीं जाएगा, तो तब तक के ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी राइज नहीं होती है। हाँ, राइज नहीं होती है, मतलब अभी जैसे जो परसों का टाइम था, जो विक्स डाउन था अराउंड, है ना, मंडे को शायद 6.5% डाउन था विक्स, है ना? तो मार्केट ने भली रैली किया था अपना मंडे के अराउंड, यहाँ पे जब हम देखेंगे, सॉरी मंडे को नहीं, सॉरी ट्यूसडे को डाउन था विक्स। ट्यूसडे को आपका जब मार्केट आया था, तब आपका अगर मतलब छुट्टी से पहले अगर मार्केट ऊपर और विक्स डाउन है, तो इस केस में आपका ये होगा कि जो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो कॉल ऑप्शंस यू कैन सी ट्यूसडे को बिल्कुल भी एकदम, जो वीकली ऑप्शंस थे आज के जो है 6 अक्टूबर के, तो वो एकदम हिल ही नहीं रहे थे। जैसे ऊपर जा रहे थे, नेक्स्ट कैंडल वापस 80% 90% रिट्रेस कर रहे थे, तो क्योंकि विक्स वाज डाउन, है ना, उसके उस सिनेरियो में, तो वो डिफरेंस गिरता है। और आज जो है, आज जैसे विक्स वाज नियरली फ्लैटिश, तो आज के दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो नॉर्मल मूव करेंगे, बिकॉज विक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जो है नॉर्मल मूवमेंट है, तो नॉर्मल कॉल बढ़ेंगे, नीचे गिर रहा है मार्केट तो नॉर्मल कॉल नीचे गिरेंगे, बस वैसा वो सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो होता है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस विकास जी। हेलो। हाँ विकास जी बोलिए। हाँ जी, मेरी सिर्फ क्वेरी इतनी है, आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग। मैं इसका जानना चाहता हूँ कि मतलब डेली इंट्राडे करने की जगह लाइक मैं मंथली या वीकली, नेक्स्ट वीकली किस तरह का स्ट्रेटल या स्ट्रेंगल या क्या बना सकता हूँ काइंड ऑफ, जिसमें मैं आराम से बैठा रहूँ। अच्छा देखिए, अभी जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल अभी मार्केट्स में अभी ये एक साल से मतलब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बिल्कुल काम नहीं करते अच्छे से। राइट, बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी कैसा है, अभी कैसा रहता है कि पूरा दुनिया भर के लोग वही बनाते रहते हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी मार्केट में आता है वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाता है। तो आप कैसे, इंस्टीट्यूशनल एल्गोस को भी पता है कि वो सब बैठे है सेल करके, तो वो वॉलीटिलिटी तो आनी है मार्केट में। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के जो मतलब जो बोलते हैं ना अच्छे दिन थे, वो ख़त्म हो गए, है ना? मतलब आपको बिना वॉलीटिलिटी के, बिना स्विंग्स के उसमें पैसा नहीं मिलता है ना? सेकंड जो चीज़ है, अभी जो हमेशा जो सिस्टम्स मार्केट में, मतलब मैं जो बनाता हूँ और मैं जो मतलब हमारे ऑप्शन प्रोग्राम में जो सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मेरा सबसे फेवरेट सिस्टम है, मैं बनाता हूँ कैलेंडर्स, राइट? तो कैलेंडर्स उसमें कैसा रहता है, क्योंकि उसमें आपका बाय भी होता है, सेल भी होता है। अगर मार्केट समझ लो कल अगर कुछ 3-4% गैप डाउन हो गया, है ना, तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में क्या है, क्योंकि दोनों सेल ले गए, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, है ना? राइट। तो एक अगर एकदम से 300% राइज हो रहा है, तो दूसरा तो मैक्सिमम सिर्फ 100% ही गिरेगा ना, राइट? मैक्सिमम वो भी नहीं गिरेगा 100, वो तो सिर्फ 60-70% आके लॉक हो जाएगा। तो हाँ, तो उसमें जो है सेल और सेल, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो सेल और सेल एक दूसरे को मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो रहता है बाय और सेल, तो कौन से सिस्टम्स रहते हैं, जैसे मैं जो बनाता हूँ, मेरा जैसे मैं कैलेंडर्स बनाता हूँ, अगर मुझे उसमें एग्रेसिव जाना है तो 1:2 कैलेंडर बनाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक जो कैलेंडर मैं अभी ये बताऊँ, ये कैलेंडर अभी जस्ट लास्ट में कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये कॉल साइड कैलेंडर है 1:2, ठीक है? तो ये जो है, ये मार्केट अब नीचे गिरा तो ये 1:2 कैलेंडर वहाँ पे होल्ड किया है, सो दैट अगर मार्केट नीचे जाएगा तो जो रिलेटिव डीके रहता है 2 एक्सपायरी का। अब इसमें ऐसे जो केस है, अब यहाँ पे मुझे ट्रैक तभी करना है जब मार्केट 39,600 के ऊपर जाएगा, नहीं तो मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं, उसको जो करना है करने दो। नीचे जा रहा है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो प्रॉफिट वो 2-3 दिन में बढ़ा देगा वो। नहीं, मैं सर समझा नहीं, एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने 4800 की सी आपने सेल की और 41 इसकी वो दो अलग अलग एक्सपायरी है कैलेंडर, हाँ, मतलब अलग अलग एक्सपायरी का होता है। ये 20 अक्टूबर का है, ये 13 अक्टूबर का है, ठीक है? तो उसमें मैं अलग रहता हूँ, जैसे मैं 1:2 कैलेंडर, कभी 1:2 डिपेंड करता है कि आपका 1:3 1:1 अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये जो सिस्टम है इसमें कैसा है, आपके पास बाय भी है, सेल भी है, ठीक है?
अब मार्केट अगर समझ लो एकदम 500-600 पॉइंट गैप अप या गैप अप हो गया एकदम, तो उसमें आपका ये रहेगा कि आपका, क्योंकि बाय लेग भी पास में है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा डेल्टा एक्सपेंशन को मैनेज करता है, वो है ना, ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय लेग है, तो वो जो है वो राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, करंट एक्सपायरी से। तो ये जो रिलेटिव होता है, तो कैलेंडर्स जो होते हैं, कैलेंडर्स आर द, जो मतलब मैं जिनको जॉब वाले है या क्या है, उनको मैं ज़्यादातर ये कैलेंडर्स कराता हूँ, एक तो ये, और स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो है वो आपके उस दिन के या उस वीक के हिसाब से बने जाते हैं। मतलब अभी आप हर वीक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? नहीं मैं हर वीक हाँ नहीं बनाता हूँ, टू बी वेरी, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल है, हाँ, छोटे कैपिटल से मैं नहीं खेलता हूँ, तो इसीलिए बराबर, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छा बनाया है लास्ट 1 ईयर में। करेक्ट करेक्ट अभी मैं करेक्ट। क्या करता हूँ, जैसे लॉन्ग या शॉर्ट, हम्म ठीक है, एक तरफ जैसे जैसे मैंने आज नेक्स्ट वीक के लिए क्या बनाया है, पुट बाय कर लिया, हम्म 1 पुट बाय किया 17,500 का, और 17,200 के 2 पुट मैंने सेल कर दिए। अच्छा। काइंड ऑफ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:2 का आपका रेशियो आपके वाला, रेशियो बनाया आपने, मतलब। हाँ 1:2 का। तो टिल 17,000 मैं सेफ हूँ, हम्म और ऊपर मेरे पास एक लिमिटेड लॉस है। अगर वो 500 से ऊपर 18,000 भी चला जाए तो मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस बराबर, होगा, एक लिमिटेड लॉस होगा। चलेगा बट ना। उसमें क्या है ना, हाँ लेकिन हम्म उसमें क्या है ना, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल आज के टाइम में, वो कुछ भी घूम रही है, हम्म कहीं भी जा रही है, कैसे भी कुछ हो रहा है। सो मैं ये कैलेंडर टाइप का, या जैसे आप बनाते हैं, मैंने देखा है आपने 1-2 बार एग्जांपल में दिया है, लाइव मीटिंग में दिखाया है, हम्म लाइव जो सेशन होते हैं, तो आप जो ये बनाते हैं, ये कैलेंडर ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नहीं, देखिए, दोनों अभी तरफ का जो बनाते रेशो हैं या वन? कैलेंडर हम दोनों बनाते हैं, अगर प्रीमियम मिलता है, देखो कैलेंडर भी हम्म, कैसा है, आपका कैलेंडर ऐसा नहीं है कि हर वीक बनेगा, 80% टाइम बनता है, 20% टाइम नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट अगर बहुत बार क्या है कि अगर एकदम साइडवेज चले जाए 2-3 दिन, तो प्रीमियम गिर जाते हैं एकदम से करंट एक्सपायरी के, तो जी कैलेंडर्स फिर आपको नहीं बनेंगे, फिर क्या है, उसी एक्सपायरी में फिर रेशो बनाना पड़ता है ना। तो वो जो हम क्या है कि कैलेंडर्स या रेशो, मैक्सिमम मेरे मेजर ये 2 सिस्टम्स में मैं प्ले करता हूँ, है ना, तो सर मेरे जो को बड़ा एक कैपिटल और, डिप्लॉयड होता है मेरा इसी में होता है, और बाकी का जो है वो फिर आप इंट्राडे पे जो एग्रेसिव अकाउंट में, उसमें आपको एट द मनी सेल करना है, बाय करना है, बाकी कुछ करना है, तो वो देन वी कैन डू वहाँ पे, मतलब वहाँ पे, है ना। तो वो जो रहता है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, और वो जो चीज़ रही है वो आपको कैसा है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है आजकल, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। पहले जो होता था कि हाँ, थर्सडे को बना लो, वेनसडे को बना लो, और फिर 2-3 दिन में मार्केट कुछ ना कुछ पैसा दे देता था। अभी जो है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वोलेटिलिटी इन स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल्स, आपका टाइम मैटर करता है, बिकॉज इट डजेंट मैटर आपने वेनसडे को भी बनाया, मार्केट डायरेक्टली थर्सडे को अगर ट्रेंडिंग हो गया तो वो उसको स्क्यू कर देगा, है ना। राइट। तो तो सर प्लीज गाइड मी कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा। अच्छा, वो गेम चेंजर में इट इज़ नॉट इन द स्कोप, अगर आपको है तो आप कॉल कर लीजिएगा, है ना, गौरव आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज जो है वो हम उसमें सिर्फ कंप्लीट प्रोडक्शन में ही वो चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि ये जो है वहाँ पे पूरा 3 मंथ्स हमारे साथ आप बनाते हो ये सब चीज़ें, राइट, क्योंकि उसका भी ओके। मार्केट के वेरिएशन से रहता है ना, कब एडजस्ट करना है, डिस्टेंस कितना चाहिए, है ना। अभी कैलेंडर में जो है 41,000 है, अगर आपका कॉन्फिडेंस मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो 40,000 पे भी बना सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो हर एक का एक सिस्टम का एक रूल्स होता है, उसके हिसाब से देन वी मेक इट। ओके, वन मोर क्वेरी। हाँ अदानी एंड का 3rd of September का, ये 3rd of October का एक बार चार्ट खोलेंगे प्लीज? हाँ हाँ, बोलिए। अदानी एंड का, अदानी एंटरप्राइज का 3rd का। अच्छा, ठीक है, 3 अक्टूबर का, हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पे आप देखिएगा, अराउंड 12 o'clock, ये 13, नहीं ये सब नहीं देख रहा हूँ मैं, हम्म RRB नहीं, मेरे पास हम्म एक सिस्टम हो रहा है, मैं वो आपसे कभी शेयर करूंगा पर्सनली, गौरव सर से कॉल करके। हम्म 12 o'clock के अराउंड आप देखेंगे 13:35, 34:35 के आसपास था ये, हम्म अ, ऐसे कुछ हाँ है, ठीक है राइट? ना, हाँ 3405 कह रहा हूँ, हाँ। हाँ, यहाँ पर जो ये लास्ट आप देख रहे हैं, जो आपने बनाया ना RRB, ये हम्म बिल्कुल सही है। हम्म यहाँ पर मैंने इसकी पुट बाय की, 10 अच्छा, पुट्स बाय किए, हम्म और जब इसने ये तोड़ा, इसको हम्म ब्रेक किया, करेक्ट, अब मैंने फर्स्ट कैंडल के बाद इसको बुक कर लिया, लाइक
हाउ आई कैन प्रिडिक्ट कि मेरे को इतना लंबा होल्ड कर सकता था मैं, अच्छा। मतलब मेरा कम 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन जाता उसमें। हाँ नहीं देखो स्पेस है ना आपको, सबसे पहले तो दिख ही रहा है कि ये लेवल जो है, ये वाली जो लेवल है, ये लास्ट लेवल सितंबर 6 सितंबर में आई थी और पूरा एक महीने बाद उस लेवल के पास आ रहा है वो, राइट। 15 मिनट्स में अगर जाएंगे तो आपके पास यहाँ तक तो कोई 3330 तक तो, जब इसने ये ब्रेक कर दिया पीडीएल को, उसके बाद यहाँ तक तो कोई नहीं था आपके पास ब्लॉक है। और नहीं सर, मैं पीडीएल तक रुका नहीं एक्चुअली, जैसे ही इसने फर्स्ट कैंडल ब्लॉक किया, आप इसको चलेगा। थोड़ा जूम करेंगे एक बार प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जो ये फर्स्ट कैंडल ये है ना 15 मिनट का, इसी के अंदर ही ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के बाद आई बुक्ड इट। मतलब चलेगा। मैं बहुत हाँ, मैं रख नहीं पाता हूँ इसको चलेगा जब मुझे लगता है कि इतना एक प्रॉफिट आ रहा है तो ऑलमोस्ट। नहीं देखिए तो अब उसको उसमें कैसा है कि यहाँ पे आपका होल्ड कैसे करना है। अब जैसे सिंपल चीज़ है कि आपका यहाँ पे पता है आपको एक ये सपोर्ट है ही, तो वो भी पता है कि हाँ मार्केट ऑन सम अनदर डे यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, वो भी बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि आपको एक प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो कोई नहीं, आप 50% लॉक कर दो, पर रिमेनिंग 50% को कैसे डेबिट में कन्वर्ट कर लेना था, है ना। तो आपने जो है बाकी का जो 50% क्वांटिटी है उसको एटलीस्ट ये 15 मिनट की कैंडल बनने तक वेट करना था, और उसको जो है आपने डेबिट में कन्वर्ट कर लिया तो प्रॉफिट लॉक हो जाता है, राइट। वो लॉक हो गया प्रॉफिट आपका। उसके बाद अब अगर मार्केट दे रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहा है तो अपने पास अगर मार्केट ऊपर भी आ रहा है तो हमने 50% तो वैसे भी सेव कर ही लिया, रिमेनिंग डेबिट बना के उसको हेज कर लिया है रिमेनिंग क्वांटिटी को, तो हार्डली जितना भी प्रॉफिट है आपका उसका मैक्स टू मैक्स 20% जाता था, है ना। जितना भी आपका प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया उससे ज़्यादा नहीं जाता था, तो बस उतना ही मतलब करना है। तो कैसे कैरी करने के लिए देखिए कैसा रहता है, कैरी करने के लिए आपको एक हेज इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज निकेट कैसा है कि हाँ किसी टाइम आप कैरी करोगे, बट अदानी का स्टॉक है, यहाँ पे कोई 33 है, पॉसिबल एक कैंडल ऐसी बना ले, राइट। यस यस ये राइट स्टॉक तो सर। करता ही है, बिल्कुल करता है, बट ऐसे केस में कैसा है कि हम लोग फिर आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फिर कैसे आप कैंडल बाय कैंडल उसको ट्रेल करो, क्योंकि ये कैसे है कि ये स्टॉक ऐसे ही भागते हैं, एक बार एक डायरेक्शन ले ले तो फिर वो नीचे नहीं आते, फिर वो मतलब वो ऊपर नहीं जाते या नीचे नहीं आते, उसी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कैंडल बाय कैंडल 15 मिनट्स की ट्रेल करो, और उसके बाद जो है जैसे ही उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है उसको एग्जिट करो, नहीं दे रहा है वो तो फिर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ करना है, राइट। ऑप्शन वो ये कि आपको हेज करना था, डेबिट बना लेते तो आपका वो थोड़ा जो इमोशनल हमारा जो रहता है कि प्रॉफिट चले ना जाए, उसके वजह से फिर हम होल्ड कर लेते हैं, राइट। मेन हमारा वही है कि प्रॉफिट अगर अच्छा मिल रहा है तो वापस मार, और सबके साथ होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसको डेबिट बना लेते हो, थोड़ा सा मेंटल स्टेट आपका शांत हो जाता है ना। चलिए यस, थैंक यू विशाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस देवांग जी। हेलो सर। हाँ देवांग जी बोलिए। हेलो भूषण जी। सर मुझे सिर्फ ये अभी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मुझे सिर्फ अपना रिलेशन आप जो बताते हैं लाइव मार्केट के वक्त जो विक्स का है, तो वो मुझे एक सिर्फ जानना है। मतलब मैं पर्टिकुलरली मैं बता दूं तो मैं ऑप्शन बायर हूँ विथ लेस कैपिटल, करेक्ट। और आपने जैसे अभी बताया एक एग्जांपल में कि आप एक तो आपने बताया कुछ डेबिट का स्ट्रैटेजी, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब आपने है ना उसमें डेबिट सिस्टम, डेबिट और ऑप्शन कॉल क्रेडिट, तो बराबर। कॉल क्रेडिट में विथ लो इस कैपिटल कैसे कर सकता हूँ? अच्छा आपने वीडियो देखा ऑप्शंस का, गेम चेंजर का 9th यस का, सर, सभी। उसमें डेबिट और क्रेडिट आप एक्सप्लेन किया, वो आपने देखा है ऑप्शंस वाला टॉपिक? यस यस, मैंने सभी अच्छा, मतलब 11 के 11 देख लिया वीडियोस ना? देखे सर। यस। अच्छा ठीक है, चलो ग्रेट। तो 10 वीडियोस है ना? हाँ 10 वीडियोस है। हाँ 11 बोला, मतलब बाकी लोग टेंशन में आ जाएंगे 11वां कहाँ से आ गया। 10 वीडियोस है। हाँ ओके। तो उसमें कैसा है कि अपना, अब देखिए ऑप्शंस कैसा है कि जो बहुत लोग वो चीज़ मिस कर देते हैं और इसीलिए ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। इसलिए कैसा है कि ऑप्शन बाइंग इज़ लाइक कि आप समझ लीजिए कि यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब माउंटेन। जैसे हम कोई भी, जैसे आप देखो एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं या कोई क्लाइंब करते हैं तो उसका एक विंडो होता है ना। आपको उसी में एक विंडो, नहीं तो अगर वहाँ पे कभी एकदम से तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो आप फंस सकते हो वहाँ पे, या फिर आपको एक तरीके से यू वोंट बी एबल टू मतलब अचीव योर मिशन। ऑप्शन बाइंग कैसा है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन सेलिंग में कैसा है कि इवन इफ यू आर रॉन्ग,
है ना। हम्म, आप एडजस्टमेंट्स करके मार्केट में अपना लॉस रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। तो मतलब यू कैन स्विच साइड्स ओवर हियर। ऑप्शन बाइंग में Okay. कैसा है कि इट इज लाइक यू कैनॉट स्विच साइड्स, आपको मोमेंटम चाहिए। मतलब वो है कि वो जो विंडो रहता है, जो स्मॉलर टाइम का विंडो रहता है जहाँ पे आपका वो मूव होना है, आपका इंडेक्स है वो आपका स्मूथ मूवमेंट आए तो प्रॉफिट तुरंत हो जाता है और एकदम मतलब जो है फिर हम उसको ट्रेल करेंगे जो भी क्वांटिटी है। अब उसके लिए जो वेदर विंडो हम बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, या जो लिमिटेड टाइम के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑप्शन बाइंग की जो मिलती है, तो ऑप्शन बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग 50% हमेशा लेस रहती है, राइट। क्योंकि हर दिन राइट। ऑप्शन बाइंग के लिए एवरी डे यू वोंट गेट ट्रेड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टुडे और येस्टरडे दिस और मंडे ऑल्सो, ये 3 दिन जो आप देखोगे ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए उतनी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज दी नहीं उसने, है ना। क्योंकि राइट। मार्केट वॉज काइंड ऑफ अ स्टॉल हो रहा था, ऊपर जा रहा स्टॉल हो रहा, नीचे जा रहा स्टॉल हो रहा, और रेंज में ही था। तो ये तीनों दिन जो है किसने पैसे बनाए, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जिन्होंने बनाए हैं, ये तीनों दिन पैसे बनाए, बिल्कुल कोई टेंशन, मार्केट ने कोई वोलेटिलिटी नहीं, कोई बड़े रेंज नहीं, सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रेंज में लॉक था। अब कंपैरेटिवली अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि विक्स कैसे इम्पैक्ट करता है, तो विक्स कैसा है कि विक्स का आपका जो रहता है वो अगर 3% से प्लस है, राइट, या पॉजिटिव है या राइजिंग है, उसमें क्या रहता है कि जो साइड ऑप्शन जो सेलर्स रहेंगे वो हमेशा वेरी रहेंगे, क्योंकि अब विक्स अगर राइजिंग है 3% ज़्यादा है तो वो लोगों के दिमाग में रहेगा कि ये बड़े रेंज वाला मार्केट बन हो रहा है या जा रहा है ये, राइट। सो व्हाट विल दे हैपन, दे विल ट्राई टू, जैसी अगर मूवमेंट आएगा दे विल ट्राई टू क्लोज द पोजीशंस और पीछे शिफ्ट होंगे थोड़ा ज़्यादा, राइट। उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका कॉल ऑप्शन है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है वो राइस, उसको 10 पॉइंट जाना है वो जाएगा 15 पॉइंट, राइस एक्स्ट्रा देगा, बढ़ेगा एक्स्ट्रा, बिकॉज विक्स की वजह से जो सेलर्स है ना। और ये एल्गो होता है, मतलब ये कैसा होता है, जो अब बड़े इंस्टीट्यूशन से वो थोड़ी मैनुअली बैठ के डालते रहेंगे, ये सारा एल्गो मार्केट में एक तरीके से ये सारे सिनेरियोस करके वो डिस्टेंस भी देखता है कहाँ सेल करना है, कहाँ उसको जाना है, राइट। तो अगर उसको पता है कि विक्स अगर राइजिंग है तो जो भी एल्गो रहेगा इंस्टीट्यूशनल का जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वहाँ पे पास में, वो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, जैसे ही मार्केट आ रहा है वो अपने पोजीशंस पीछे शिफ्ट जल्दी करेगा, वो वेट नहीं करेगा ज़्यादा, राइट। तो उस केस में क्या हो रहेगा, जो ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा वो थोड़ा फास्ट शॉर्ट कवरिंग की वजह से राइज होगा। तो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेज रहेगा कि वो अगर कंटिन्यूस मार्केट मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो विक्स अगर बढ़ता है ना, तो जनरली दैट शोज कि मार्केट एक डायरेक्शनल या ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी इज़ हायर, राइट। ये पहला एक होता है। उसके बाद अपने को सेटअप मिल रहा है तो वो सेटअप में आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। सेकेंड, विक्स अब 3% से ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब विक्स इज लेस देन 3%, अब तब क्या होता है कि विक्स इज लेस देन 3% और ये विक्स मैक्सिमम टाइम गिरता तभी है जब मार्केट बुलिश होता है, ओके, राइट। वोलेटिलिटी इंडेक्स मैक्सिमम टाइम गिरता तभी है जब मार्केट बुलिश होता है। अब right. जब बुलिश होता है तो उस केस में क्या होता है कि जनरली हमेशा जो सेलर्स रहते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, वो कॉल साइड या कॉल सेल की तरफ वो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कंपेयर टू पुट सेल, क्योंकि कभी भी ब्लैक स्वान इवेंट आता है मैक्सिमम टाइम वो डाउन साइड आता है, या कभी भी कोई ऐसा इवेंट आता है मैक्सिमम टाइम वो डाउन साइड ही आता है ना, राइट। तो राइट, कॉल साइड जो है वो कंफर्टेबल रहता है। तो इसीलिए जब मार्केट बुलिश होता है तो सबसे पहले आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स फॉल होता है, और अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर रहा है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम रहेंगे जो कॉल साइड, वो कैसा रहेगा कि कॉल साइड के जो प्रीमियम वो उतने जल्दी कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विक्स गिर रहा है ना, तो वो लोग बोलेंगे हम थोड़ा और वेट करने के बाद उसको कवर करेंगे, वो उनका। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट मूव होगा, ऑप्शन थोड़ा जाएगा, स्टॉल होगा, फिर जाएगा, फिर स्टॉल होगा, तो स्टॉलिंग होती है ऑप्शन के प्रीमियम में, राइट। बट अगर विक्स राइज अगर हो रहा है ना, कभी आप देखोगे अभी जैसे लास्ट वीक 6-7% राइज हो रहा था ये इस टाइम पे भी राइजिंग था विक्स 28 सितंबर को, इस टाइम पे भी राइजिंग था 29 सितंबर को। तो जो मूव आता है वाटरफॉल की तरह, तो उस केस में जो प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट मतलब आपका 300 का प्रीमियम बहुत जल्दी एकदम 600 पे भी पहुंच जाता है, क्योंकि
विक्स राइजिंग है तो कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग होती जा रही है, पीछे शिफ्ट होते जा रहे हैं प्रीमियम्स, राइट। तो ओके विक्स का इंपॉर्टेंस ये रहता है कि अगर मार्केट विक्स राइजिंग और उसके साथ साथ मार्केट पीडीएच, इट शुड बी बिलो पीडीएल ऑल्सो। सो इफ विक्स इज राइजिंग एंड द मार्केट इज बिलो पीडीएल और आपको वहाँ पे एक सेल सेटअप एज पर द रूल्स मिल रहा है, देन वो सेटअप्स आपको मिस नहीं करने, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग प्रॉफिट्स हाई रहेंगी, राइट। ओके तो ये डिफरेंस होता है। विक्स का एक रहता है कि अगर विक्स राइजिंग है तो आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ एक अपॉर्चुनिटी अगर जनरली मिलती है तो उसको नहीं फिर इग्नोर करना है, और विक्स फॉलिंग है तो आपको जनरली वो कॉल साइड अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कॉल साइड अपॉर्चुनिटी आपको तभी पैसा देगा जब वहाँ पे आपका स्पेस रहेगा, नहीं तो कॉल क्या है, थोड़ा थोड़ा जल्दी स्टॉल होते रहता है ना। इसीलिए जो Okay. रहता है कभी भी पुट बाइंग अगर आपको मिलता है तो वो वहाँ पे ऑप्शन बायर्स में यहाँ पे आपका पैसा अच्छा बनता है ना। बहुत लोग ऑप्शन बायर से वो पुट बाइंग मिलती है तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो विक्स की वजह से ऑप्शन स्टॉल नहीं होते, फटाफट मूव होते हैं, है ना। और बाकी के टाइम आपको कॉल साइड अगर ऐसे लग रहा है स्पेस कम है या फिर नहीं मूव हो रहा है तो कॉल साइड फिर डेबिट बना के आप जा सकते हो। तो वो डेबिट फिर कैसे बनाना है, मतलब मेरा बताया तो ना वहाँ पे, कैपिटल कम आपने है तो वीडियो देखा है ना, आपने 500 पॉइंट का डेबिट बना सकते हो बैंक निफ्टी में, एट द मनी का बाय और उसके 500 पॉइंट एट ओटीएम सेल, ये बन गया आपका डेबिट, है ना। तो अगर ये कोई डेबिट यहाँ पे बनाना है, जैसे अगर मार्केट किसी को लेट से कि यहाँ बनाना है, चलो एक एग्जांपल 39,500 के पास, तो 39,500 आपका कॉल बाय और 40,000 कॉल सेल, ये आपका बनेगा डेबिट बन गया आपका। तो और ये जो रहता है उसका वेडनेसडे और थर्सडे बनाना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाना है, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम ही नहीं रहता, है ना। ओके वेडनेसडे थर्सडे बनाना है और नेक्स्ट एक्सपायरी का वेडनेसडे बनाना है। थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब अगर ये 13 तारीख का आप बनाओगे, 13 अक्टूबर का जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो वो चालू होगा आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब से। वेडनेसडे आपका था ये 5th ऑफ अक्टूबर, सॉरी अभी तो कल तो छुट्टी थी, तो चलो 4th ऑफ अक्टूबर से आपका चलेगा अराउंड जो भी 11 अक्टूबर विच इज़ नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ये आपका आपके लिए वो 13 अक्टूबर को आपको इस पीरियड में आप डेबिट क्रेडिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 12 अक्टूबर जैसे ही आएगा फिर 20 अक्टूबर आपका जो भी नेक्स्ट रहेगा उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके और ये आपने जो 500 किया ये मतलब एज पर प्रीमियम किया या कैसे किया, मतलब नहीं वो डिफरेंस? डिस्टेंस रहता है वहाँ पे, अपने वीडियो देखा ना, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। ये 500 क्वांटिटी अगर आपका रहेगा तो उसमें आपका जो भी नेकेड बाइंग है उसका रिस्क 500 क्वांटिटी में 50% कम रहता है, राइट। और 300 पॉइंट्स का अगर कर रहे हो, अभी स्टार्ट 300 से करो स्टार्टिंग में, एक बार कंफर्टेबल जब तक नहीं होते हो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में उसका आधा करना है, जितना भी बैंक निफ्टी कर रहे हैं निफ्टी उसका आधा, है ना, क्योंकि इंडेक्स भी उससे आधा ही है वो। तो यहाँ पे 300 पॉइंट्स का अगर हमने बैंक निफ्टी में किया तो जो नेकेड बाइंग का जो रिस्क है उससे वो रिस्क 70% आपका रिड्यूस कर देता है। तो रिस्क रिडक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट सिस्टम्स होता है, ठीक है। ओके तो ये आपने बताया तो हाँ। और मैं जैसे ऑप्शन बायर हूँ तो शुड आई गो फॉर वीकली, क्या ये आपने जो स्ट्रैटेजी बताया वैसे, या फिर मंथली अभी अगर आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा ये चाहिए, मतलब कंफर्ट लेवल चाहिए थोड़ा, नहीं तो स्टार्ट मंथली से करो। वीकली कैसे वोलेटाइल ज़्यादा रहता है ना, तो उसको मैनेज करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्टार्ट विद मंथली एंड ओके मंथली में कैसे उस डीके इंट्राडे डीके नहीं आता है ना, बराबर। तो मंथली से स्टार्ट करो और फिर वीकली में आओ। डेफिनेटली प्रॉफिट पोटेंशियल वीकली का ज़्यादा रहेगा, बट वोलेटिलिटी भी वीकली में ज़्यादा रहेगी, दोनों बात वही है, सेम ही है आपका है। तो मंथली से स्टार्ट करो, अक्टूबर एक्सपायरी, और मंथली स्टार्ट करना है तो 500 पॉइंट दूर बाय करो चलेगा, एट द मनी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो 800-900 के ही होते हैं, है ना। 500 पॉइंट्स दूर, जैसे 39,500 है तो 40,000 का बाय करो, क्योंकि इंट्राडे डी के तो आनी नहीं वाला है, तो फिर 500 पॉइंट दूर बाय करने से कोई आपको डिसएडवांटेज है ही नहीं, ठीक। अच्छा चलिए, ओके थैंक यू। यस यस गौरव, आप यू आर सेइंग। यस 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 तो मैं वही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बहुत से लोग हैं लाइक जिन्होंने मुझे क्वेरी पूछा कि सर चार्ट्स कौन से यूज करने हैं। तो चार्टिंग के लिए मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं चार्टिंग एंड ट्रेडिंग बोथ, तो वी आर यूजिंग फायर सिक्योरिटीज। जैसे आप मार्केट में आओगे तो मल्टीपल ऑप्शन है वहां पे ब्रोकर के और चार्ट्स के भी, जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, और भी कई सारे लोग वहां पे हैं। बट
देखिए ट्रेडिंग का कंफर्ट कैसे होना चाहिए हम लोगों का कि ट्रेडिंग हमें लाइक जो चार्ट्स है वो चार्ट्स की एक्यूरेसी मैटर करती है कि हमारा ट्रेडिंग राइट डायरेक्शन में जाएगा या हमारा ट्रेडिंग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो जीरोधा अपस्टॉक्स है इनके एक तो चार्ट्स भी उतने प्रॉपर वे से नहीं होते। सेकंड चीज इनमें एक और प्रॉब्लम होता है कि ट्रेडिंग का भी अभी इन्होंने अपने जो इनका पेट भर चुका है, इन्होंने बहुत से क्लाइंट बेस जुड़ा लिए हैं, सब कुछ इनका हो चुका है, तो ये लोगों को अभी उतनी उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो वो अपने जो अपग्रेडेशंस है या वो है तो ये लोग वो अपग्रेडेशंस नहीं कर रहे हैं, सो विच मैटर्स अ लॉट। सो इसीलिए अभी हम लोग वी आर यूजिंग एक 5-6 years से वी आर यूजिंग फायर्स। ओके, मतलब पर्सनली आई एम यूजिंग, फिर उसके बाद वी हैव स्टार्टेड उसको काफी हमने टेस्ट किया कि क्या फायर सिक्योरिटीज उतना रिलायबल है वो मतलब देने के लिए या नहीं है, वो सारा हमने टेस्ट किया। उसके बाद हमें जब लगा कि नहीं इसमें ऑर्डर्स भी काफी स्मूथली चलते हैं, प्लस अभी आप जैसे ऑप्शन बाइंग करो या वो करो ऑप्शन सेलिंग करो तो दूर के ऑप्शंस भी वो आपको सेल करने देता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीरोधा एंड अपस्टॉक नहीं देते मल्टीपल टाइम। वैसे तो जीरोधा और अपस्टॉक की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो ये हैंग बहुत होते रहते हैं, इनके प्लेटफॉर्म उतने अच्छे नहीं है और बहुत बार लोगों को उसका भी मतलब लाइक जीरोधा ने अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया अपना सर्वर, तो उसका खामियाजा जो मतलब लाइक उनके जो कस्टमर्स है जो ट्रेडर्स है उनको भुगतना पड़ा है, राइट। दे मेड अ लॉस, इधर ऑर्डर डालते हैं फिर वो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होती है या वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम उसको एग्जिट भी नहीं कर पाते ड्यू टू देयर सर्वर इशू, बहुत बार ये चीजें वहां पे आती रहती है। तो फायर सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म काफी स्मूथर है। सेकंड चीज है कि जैसे अभी आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू आप फ्री वाला वर्जन यूज करोगे तो वन विंडो आप यूज कर पाओगे, वही फायर सिक्योरिटीज में जो है उनका टाई अप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से है। इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसका टाई अप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के साथ है। तो जो ट्रेडिंग व्यू को आप पैसे देके लाइक मिनिमम उनका 1000 रुपीज तक का कुछ पैकेज है, तो वो पैकेज लेने से यदि सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है प्लस इतना रिलायबल प्लेटफॉर्म है टू डू द ट्रेडिंग, तो मेरे मतलब हम लोगों के हिसाब से फायर सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टिल डेट। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे लाइक कोई भी इन्वेस्टर वगैरह ये लोगों ने नहीं बनाया है, ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स ने बनाया है। तो ये कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स ने पहले ट्रेड एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजों की नीड होती है वो प्रोवाइड वहां पे काफी इफेक्टिवली फायर सिक्योरिटीज ने किया है। तो आप देखिए उसको फिर मतलब फायर सिक्योरिटीज आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको भी पता चलेगी कि हाँ यार मतलब वहां पे ट्रेडिंग भी चार्ट से होती है, दूर के ऑप्शन सेल करने देता है, डेटा काफी स्मूथ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पे फायर्स अकाउंट भी वहां पे। तो ये चीजें आपने कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। मैंने फायर सिक्योरिटीज के अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप में अभी दी है। वो एक गूगल फॉर्म है जिसपे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है, सबमिट करना है। ये आज रात मतलब अभी कर दीजिए अगले 1 घंटे में। सो मैं ये डेटा फायर सिक्योरिटीज को दूंगा। कल आपको फायर सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आएगा, एक सर या मैडम कॉल करेंगे, तो कॉल को रिसीव करना है आपको। आप कॉल रिसीव नहीं करोगे तो प्रोबेबली वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो नंबर वही देना जिसके ऊपर व्हाट्सएप भी है और कॉल भी आप रिसीव करते हो। तो आपने कॉल रिसीव नहीं किया तो वो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे देंगे। तो आपको व्हाट्सएप पे वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट्स उनको ही दे दीजिए। सो दैट क्या होता है कि आप बोलोगे कि मैं वो लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करूंगा, मैं खुद करूंगा, तो वहां पे आपको मतलब कभी कभी 15-20 डेज से भी ज्यादा का टाइम लगेगा अकाउंट ओपन करने में। बट आप जल्द से जल्द उनको वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो दे रहे हो, तो वो क्विकली एक 3-4 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट करके आपको स्टार्ट करवा देंगे। तो देखिए उनको प्रॉपरली हेल्प कीजिए, वो बताएंगे आपको कि गौरव सर या क्या मार्केट गुरुकुल से रेफरेंस है, तो उतना आप उनको कोऑपरेट करिए और अपना फ्री में ही अकाउंट, उन्होंने वो पैसे वैसे मांगेंगे भी नहीं आपको अकाउंट ओपनिंग फीस एंड ऑल, बट वो मांगते भी है तो मुझे कंसर्न करिए, राइट। मैं उनको बोलूंगा बिकॉज अपना कैसे हुआ है अराउंड एक अभी 6-7 थाउजेंड जो अपने स्टूडेंट्स है सबका अकाउंट फायर सिक्योरिटीज में है। तो होता क्या है, और ऊपर से जो उनके जो लाइक को फाउंडर है लाइक तेजस खोड़े, सो इज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ माइंड। सो उसमें कैसे होगा फिर कि कुछ भी इश्यू है तो मैं तुरंतली डायरेक्टली उनसे बात कर सकता हूँ।
और अभी इतने सारे अकाउंट्स अपने एंड से उनको दिए गए हैं, तो आपको इन फ्यूचर भी कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो वी फाइट फॉर यू ओवर देयर। सो बेझिझक होके आप वहां पे अपना डिटेल्स फिल कर लीजिए और आपका अकाउंट हम लोग वहां पे ओपन करवा देंगे। अब सेकंड एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम लिया, तो आपने गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों लिया? सो यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और आपको सबको पता चला कि वहां पे कि वी पीपल वी आर प्रॉफिटेबल। हमने फायर सिक्योरिटीज के भी जो 30 डे चैलेंजेस है या वो है, तो वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए भूषण जी ने वहां पे। अगेन सारे सर्टिफिकेशन से, बट एक प्रैक्टिकली वो भूषण जी क्वाइट साउंड ओवर थे। एंड और एक चीज आपने जो देखी होगी यहाँ पे, फिर जो भी गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने आपको नॉलेज दिया है, तो वो सारा पूरा जेन्यून एंड रियल नॉलेज हमने आपको दिया है। आप यदि वीडियोस देखो, ये बाकी सपोर्ट सिस्टम, डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन, इतना एक 599 रुपीज में मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई नहीं दे रहा होगा। तो कंटेंट वैसे ही है, आरईबीबी सेटअप ये वो। अब इसमें कैसे है कि जो अभी देखिए कैसे होता है ना, कोई पढ़ाने वाला हो, तो पढ़ाने वाला आपको जो भी बंदा हो, आपका जो भी मेंटर हो, तो उसका एक आपके साथ रिलेशन, मतलब लाइक एक कांटेक्ट आपका होना चाहिए। अब जब गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम है, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हमने वहां पे दी है, बट होता कैसे यहाँ पे, अभी आप देख रहे हो अराउंड एक 10,000 12,000 तक स्टूडेंट्स है। तो पर्सनली इतना सबको टाइम दे पाना, पर्सनली सबके साथ इंटरेक्शन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि कैसे करें पर्सनली, इतने 12,000 स्टूडेंट्स, बिल्कुल वो फिर मतलब एक लॉजिकली वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब आप में से जो भी लोग सीरियस है रिगार्डिंग ट्रेडिंग, कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से कंसिस्टेंट इनकम और अच्छी तरीके से जनरेट करना है, एंड एक पर्सनल आपको इंटरेक्शन आपके मेंटर के साथ भी होना जरूरी है। मैं ये आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ये चीज बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कैसे एक मतलब मेंटर टीच करता है आपको, और कैसे आप उनके साथ इंटरेक्शन कंसिस्टेंट वे से करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो उसके लिए मतलब अभी गेम चेंजर में हमने क्या किया है, फिर प्राइस एक्शन प्योर ही कवर किया है, बट इसमें पर्सनल इंटरेक्शन ना होने की वजह से 20% ऑफ द प्राइस एक्शन हम वहां कवर कर पाए हैं। अब जो लोग काफी सीरियस है, सिंसियर है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग, तो वो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं, जहां पे 100% प्राइस एक्शन हमने कवर किया है। तो वहां पे अभी जैसे गेम चेंजर के है, गेम चेंजर के सारे सेशंस रिकॉर्डेड है। वहां पे देयर इज अ डिफरेंस की जो सेशंस आपके होंगे वो लाइव होंगे। आपके वीकली 2 से 3 सेशन वहां पे होते हैं, टाइमिंग इवनिंग रात को 9 से 10 होता है। जूम मीटिंग पे सेशन होता है, जैसे सेशन हुआ नेक्स्ट डे आपको सेम सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मतलब कोई भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, आप वो सेशन देख के कर पाओगे। सेकंड, लाइव सेशन होने के कारण आपका हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, आपके पास हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। लाइव मार्केट में भी कभी आपको है तो वी आर देयर टू असिस्ट यू। सेकंड डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला गेम चेंजर में 20% प्राइस एक्शन कवर हुआ है, यहाँ पे 100% प्राइस एक्शन कवर हुआ है। उसके बाद गेम चेंजर में आप देख रहे हो अभी अभी कभी 200 कभी 400 स्टूडेंट्स होते हैं इन यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन। पॉसिबल ही नहीं होता आपके डाउट सॉल्व करना हर एक के, बट वहां पे कैसे होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, 10 to 15 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए। सो 100%, और वीकली 2 से 3 सेशन होते हैं, मतलब आपके जो भी डाउट्स है वो आप वहां पे सॉल्व करवा लेते हो। अब जैसे गेम चेंजर टेलीग्राम कम्युनिटी है, तो टेलीग्राम कम्युनिटी में वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम ही मैसेज डालते हैं, आप मैसेज नहीं डाल पाओगे, मतलब अभी इसमें गेम चेंजर में। बट वहां पे आप भी सीनियर ट्रेडर्स के साथ डायरेक्टली ग्रुप में इंटरेक्ट कर पाओगे, तो रिस्पॉन्सिव ग्रुप है। गेम चेंजर में सपोर्ट सिस्टम 1 ईयर का है, वहां पे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है अभी तो। सेकंड चीज, गेम चेंजर में मंथली एक 4 5 6 लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होते, वहां पे डेली डेली होते हैं, अराउंड 1 to 2 months डेली लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होते हैं। सो वो एक अगेन इम्पैक्ट आपको वहां पे मिलेगा, और डायरेक्टली आप लोग हमारे से जुड़ोगे, हमारे से इंटरेक्शन करोगे। तो अभी जो प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम कंप्लीट वाला है, तो वो बैच है 14th अक्टूबर से वी हैव प्लान। तो जो भी लोगों को लगता है, तो अभी उसका लिंक गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, या अपना देखिए भूषण जी इनको एक बार वेबसाइट दिखाइए ना प्लीज।
यस गौरव। देखिए वेबसाइट, ओके वेबसाइट में देख लीजिए, नीचे नंबर दिया है, एक मिनट थोड़ा नीचे बॉटम में ले लीजिए। ओके, तो ये 9890 वाला नंबर जो है भूषण जी अभी जिसे हाईलाइट कर रहे हैं, तो देयर इज अ व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर। ओके, तो आपको जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मुझे 14 के बैच को रजिस्टर करना है, क्योंकि वहां पे भी लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेते हैं। मतलब कैसे 50 स्टूडेंट आ गया तो 50 को हम लोग एंट्री बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों का एक बैच साइज लिमिटेड होता है, 15 to 20 स्टूडेंट्स का ही बैच साइज हम लोग वहां पे लेते हैं, सो दैट पर्सनल अटेंशन आप पे आए, पर्सनली आपके साथ जुड़ के हम लोग वहां पे, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मेंटर मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो पूरा 100% ध्यान आप ही की तरफ हम लोगों का होता है। सो वो एक काफी बेनिफिशियल फैक्टर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वो व्हाट्सएप नंबर जो अभी भूषण जी ने हाईलाइट किया है, वो वाले व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी कॉस्ट 14,999 है, 15,000 उसकी कॉस्टिंग है। क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करोगे आप तो ईएमआई फैसिलिटी वहां पे अवेल कर पाओगे, और पर्सनली आप हमारे साथ जुड़ के रहोगे। राइट, अभी इतने स्टूडेंट है उनका नाम पता नहीं है गेम चेंजर वाले, बट वहां पे सारे स्टूडेंट्स का नाम पता होता है, एक इंटरेक्शन होता है, एक फैमिली ग्रुप भी वहां पे होता है उनका, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से 100% ट्रेडर बनने की वहां पे हमने दी है। तो आप सोच सकते हो, व्हाट्सएप पे लिखिए आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, सो दैट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर 14 अक्टूबर से होगा। और देखिए मिस भी करोगे ना सेशन, इवनिंग के जो 9 से 10 होते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहती है। राइट, और ऐसे नहीं कि प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे, आपको जो सेशंस हुए हैं करंट में वही सेम सेशन आपको वहां पे मिलेंगे, तो वो भी एक एडवांटेज आपको वहां पे है। और बाकी 100% प्राइस एक्शन होगा, और गेम चेंजर का जैसे 20% प्राइस एक्शन कवर गेम चेंजर में हुआ है, वहां पे 100% होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। सो भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज एंड गाइड दिस पीपल, थैंक यू वंस अगेन। यस चलो, ओके सो मूविंग फॉरवर्ड फिर हम लोग जाते हैं आई गेस पार्थ बलवाड़ी जी, सुभाष जी शायद आप, अरे नहीं सॉरी, मैंने सारे सीक्वेंस नीचे कर ली। यस यस प्रवीण जी। प्रवीण कुमार जी आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। ओके सो रंगाराज, ए रंगा राज गौड जी हाँ Yeah, Yes. sir, good evening, sir. या गुड इवनिंग प्लीज। I think first time जो आप दो ट्रेड लिए थे सर, actually I didn't remember the exact date, but two trades were like PE only, and one trade amount was that was increasing profit, and one amount was decreasing. I didn't understand actually that day. Okay, you can see the calendars you mean, right? Yeah, I think Put so. calendars we had taken. Put calendars, and you are taken with the same amount, sir. Yes, same amount. But that is a put one calendar. was increasing and one was correct, decreasing. correct. I didn't Because it understand was one actually. was buy and one was sell. That is Okay. why if this will increase, this will decrease, right? So this around I guess we took it on this last week. I guess we took it when there was last live session around 24th of Yes. September something. I guess we Yes, took. sir. It's in live section only. Yes. So I think this was this 22nd September or 21st September, around this date whenever we had. So put side, yes, we had taken. So in that case, what happens? You buy next expiry, right? Let's say this was 21st September. The 21st September means around the expiry was 22nd September. So generally over here, if we are going like want to trade a calendar or want to hedge the position, we can take a let's 41,000 if it is there. So 41,000 we can buy the put for the next expiry, which is 28 September. It was the 20, which was the it was 29. Sorry, 29 September was next Thursday. तो 29 September का हम लोग वहाँ पे 41,000 जो रहेगा we can buy and
22 सितंबर का जो है 41,000 जो है पुट ऑप्शन वी कैन सेल। तो इसमें कैसा रहता है कि एक आप नेट पोजीशन जो रहती है, नेट पोजीशन बाई ही होती है, बट ये जो करंट एक्सपायरी वाला व्हाट इज दैट इज इन करंट एक्सपायरी, सिंस इट्स प्रीमियम इज लेस एंड it will has a decay rate of 2 times of this expiry. So market अभी नीचे जब भी move होगा, so what will happen is that this will rise faster, this will rise relatively slower. कब तक? Till the time they become at the money, right? उसके बाद वो दोनों जो रहेगा ये तो फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा, both will then try, the delta will more or less बिकम मोर देन 0.5, तो फ्यूचर की तरह एक्ट करना चालू हो गया। तो ये जो रहता है इसको बोला जाता है कैलेंडर, वेर यू बाय द फार अवे एक्सपायरी स्ट्राइक एंड यू सेल नियर एक्सपायरी स्ट्राइक, राइट? तो दिस बिकम्स अ कैलेंडर एंड दिट बेनिफिट्स कि अगर मार्केट यहाँ से अपना मूव अपोजिट साइड करता है, इफ इट मूव्स ऑन द अपोजिट साइड, हाउ इट विल बेनिफिट? यू विल मेक अ लॉस इन 29 सितंबर बट you will make a profit in 22nd September. Again, the benefit is that it gives a margin benefit. So if one is have a capital of, let's say अगर 1 lakh capital है, in 1 lakh you can even make it calendars of 4 lots. So 4 lots means 100 quantity. So in a trade it can give you a profit of around 6,000 7,000 वगैरह भी profit वो दे सकता है if it works well. So वो एक रहता है कि hedge margin benefit भी मिल जाता है, hedge का भी एक benefit you get, and since you are taking 2 expiries, in a way the differential of the move between the expiries, that is what you take an advantage of that, right? So this is called as a calendar. For this if you want you can just type what is the put calendars, call calendars, like if you will get many such articles on the net for basics if you want. Sir, and one more question. What you suggest, option selling is best or option buying? No, see, it depends on your capital. Like if for those generally for those who have capital of more than 3 lakhs, right, they can do both, right? Because if the market is sideways, they can go and make straddle triangles on that day, and if the market is kind of a trending, तो उसके लिए आपको तो कैपिटल तो है वो कम कैपिटल, बाइंग के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं रहती. फॉर एन ऑप्शन बायर जो रहता है, मतलब उसमें कैसा है कि इफ़ यू हैव अ गुड कैपिटल यू डू बोथ, यू डू ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, यू डू ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो, राइट? डिपेंडिंग उसमें आपका मतलब जो है यू कैन डू बोथ. बट इफ काइंड ऑफ इफ कैपिटल इज लेसर, देन मैक्सिमम ही हैज़ टू फोकस ऑन ऑप्शन बाइंग ऑल्सो, बिकॉज ही कैनॉट डू दैट प्रॉपर सेलिंग, वो नहीं कर पाएगा, है ना? ही कैन डू ओनली हेज सेलिंग. तो दैट इज़ द डिफरेंस. जो रिटर्न्स का डिफरेंस है, ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली विल हैव more ROI, so return on investment will be more, but you cannot deploy very big capital in option buying because of the nature of volatility involved. तो यहाँ पे जो रहेगा आपका हमेशा सिर्फ ROI is more, so capital deployed and emotions also, capital deployed will be lesser, right? Relatively lesser. Why? Because सबसे important चीज़ है कि you प्ले क्लोजर टू द मार्केट्स. हम लोग मार्केट के पास में खेलेंगे अगर हम कभी भी बाइंग करेंगे, तो आपके सारे जो आपके बाइंग स्ट्राइक रहेंगे वो एट द मनी या हल्का सा 100 पॉइंट OTM या इन द मनी वैसे ही रहेंगे. सो इसलिए यहाँ पे आपको कैपिटल डिप्लॉयमेंट यू डोंट रिक्वायर बिग. सो इफ़ लेट्स से किसी के पास 3 लाख का अकाउंट है, तो उसमें से सिर्फ 1 लाख भी अगर वो मैक्सिमम अगर अलग से रखेगा तो भी ऑप्शन बाइंग के लिए उसको ज़्यादा डिप्लॉय करने की इनिशियली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन 1 lakh ऑल्सो ही कैन बाय 5-6 लॉट्स ईजीली, है ना? तो उसमें जो रहेगा वो डिफरेंस रहेगा. सेलिंग के लिए जो रहेगा, सिंस सेलिंग यू डू इन फार अवे OTMs जनरली, है ना? बिकॉज ऑप्शन जो सेलर रहेगा वो हमेशा मार्केट से ही विल ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पास में तभी आएगा व्हेन ही विल बी कॉन्फिडेंट कि अभी डायरेक्शनल ट्रेड आ रहा है. नहीं तो
he will either make a straddle, तो he will kind of make a neutral अगर range है, या फिर he'll make a strangle far away, दूर जाके वहाँ पे. बट मैक्सिमम जो प्योर ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, दे जनरली मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, है ना. तो आप जो देखोगे, जैसे कि अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, जैसे कि फॉर मी आई एम सेइंग कि अगर जैसे कैपिटल अच्छा है, तो मुझे अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस दिन मैं 30-30 का ऑप्शन सेल करके चालू करूँगा, कॉल और पुट, कि चलो देखते हैं अभी क्या होता है. कुछ मार्केट अभी क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है. सो जनरली ये जो मंडे, ट्यूसडे और आज का दिन है, ये 3 दिन मैक्सिमम मैंने वही किया है. बिकॉज आई स्टार्टेड सेलिंग विद लेस प्रीमियम्स, आई मेड अ स्ट्रैडल और समथिंग, बिकॉज आई डायरेक्शन वॉज आफ्टर द गैप अप मार्केट काइंड ऑफ बस घूम रहा था वहाँ पे. इट वॉज जस्ट डूइंग इन अ साइड वे. सो इफ़ यू हैव अ गुड कैपिटल, रिकमेंडेड कैपिटल, अगर आपको प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग करना है तो मिनिमम 3 लाख प्लस आपका होना है. इफ़ यू हैव दैट, देन यू कैन डू बोथ. Option buying has to be done only when there is a directional trade. Rest, you have to focus on selling OTMs and छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहो जब मार्केट में ट्रेड नहीं है, और जब डायरेक्शनल ट्रेड आएगा देन यू कैन जंप टू बाइंग, राइट रंगा जी. सो both are like, it is not like it's a different, both are like it depends on the what phase the market is in. अगर मार्केट वहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वहाँ पे आप बाइंग से तो पैसा बना ही नहीं पाओगे ना, राइट. यू कैन नॉट मेक मनी बाय बाइंग ऑप्शंस इन सच सिनेरियोज. सो इफ इन सच सिनेरियोज वी कैन मेक जितना भी मार्केट, इफ लेस प्रॉफिट, वी कैन मेक मनी बाय making a straddle or strangle. So in this case, this markets are only for option sellers. Buyers cannot make. Now, if it breaks down out of the range, then this market is for a directional option buyer and also for directional option seller. Then who will make money in this market if it goes up? A call buyer will also make money and a put seller will also make money. Both. But जो neutral players है, straddle strangle वाले, वो directional market में नहीं बनाएंगे. तो it is like what इस जनरली ऐसा होता है कि लोग कभी भी मार्केट में आते हैं 920, अभी ये स्ट्रैटेजी बहुत फेमस होती है, अभी ये लोग बनाते हैं 920 को स्ट्रैडल वगैरह, वो नहीं काम करती है अभी, वो बहुत सरदर्द है वो बनाना वहाँ पे. एंड ROIs जो पहले मिलता था अभी उससे बहुत कम मिलता है. इनफैक्ट काफ़ी लोग वहाँ पे लॉस में करते बिकॉज ऑफ वोल्ट. तो उसमें कैसा है कि रादर देन 920 को कुछ भी बनाओ, बेटर है कि मार्केट को सेटल होने दीजिए. अगर साइडवेज है, थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद भी बना ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देन मेक अ न्यूट्रल सिस्टम, एंड उसके बाद अगर मार्केट डायरेक्शनल जा रहा है तो देन यू कैन नीड टू कन्वर्ट दैट न्यूट्रल सिस्टम इनटू डायरेक्शनल. बट ये लोग वही कर पाएंगे जिनके पास कैपिटल है. फॉर अदर्स हु आर लेस, छोटा कैपिटल है, वो नहीं कर पाएंगे. उनको ये साइडवेज मार्केट में बस पॉपकॉर्न खाना है, बैठे रहना है. इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू टेक द डायरेक्शनल ट्रेड्स, राइट. सो डिसिप्लिन ज़्यादा लगता है. सो इट इज़ लाइक एज योर कैपिटल ग्रोस, योर इन्वॉल्वमेंट आपको अगर मार्केट में चाहिए तो आप छोटा प्रॉफिट, मतलब जब मार्केट कुछ दे नहीं रहा है, एटलीस्ट यू कैन मेक रिस्पेक्टेबल स्मॉल प्रॉफिट बाय डूइंग नथिंग. मतलब आप ये जो है कि OTM सेल करके भी वहाँ पे बना सकते हो, कैपिटल एक अच्छे लेवल पे जाता है, राइट. तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आपको देखेंगे कि 1-1, 2-2 लाख के प्रॉफिट पोस्ट करेंगे, है ना, सोशल मीडिया में. तो हमें लगता है यार 1 लाख का प्रॉफिट कितना है, बट उनका कैपिटल भी 1 CR, 2 CR, 3 CR रहता है. तो उस कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% इज दे आर जनरेटिंग, है ना. तो वो एक तरीके से उतना आप OTM सेल करके भी इजीली बना सकते हैं. तो ये जो रहता है ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस यही रहता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट. एंड व्हेन द मार्केट इज़ नॉट क्लियर, यू कैन स्टिल मेक मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस, राइट. द साइडवेज है, टाइम पास कर रहा है. बट इन ऑप्शन बाइंग mandatorily we need a directional market or else we will not make money. सर ऑप्शन सेलिंग्स में OTM ही लेना है क्या कंपलसरी? वी कैन टेक द एट द मनी आल्सो, हाँ, राइट? ले सकते हो, ATM भी ले बट सकते वही एट द मनी कब लोगे, वही बोल रहा हूँ. एट द मनी आप तभी लोगे जब डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा या फिर आप स्ट्रैडल बनाना है आपको. दो ही चीज़ में, अगर आप स्ट्रैडल बना रहे हो तो ही एट द मनी लोगे, राइट. और इफ़ इट्स अ डायरेक्शनल ट्रेड, है ना, मतलब अब मार्केट अभी यहाँ पे आया, बेस बिल्डिंग की है, अब यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन कर दिया. सो इन केस यू आर नो कि इट्स अ डायरेक्शनल ट्रेड, देन यू कैन गो फॉर कॉल सेलिंग एट डाउन, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट अभी एक डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. सो ओनली फॉर डायरेक्शनल ट्रेड और मेकिंग स्ट्रैडल एट द मनी लिया जाता है ना. बट
तो ये दो चीज़ों में एट द मनी है। बाइंग में कैसा है, बट आप एट द मनी स्ट्रैडल उसमें नहीं बना सकते हो ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि वो जो रहेगा मार्केट साइडवेज जाएगा, दोनों साइड से लॉस होगा। तो वहाँ पे जब डायरेक्शनल ट्रेड रहेगा तो ये ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे, राइट? ओके, क्लियर है ना आपको? हाँ क्लियर है सर। वन लास्ट डाउट सर, हाँ ये एक्चुअली ये थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ सर, ट्रायंगल और स्ट्रैडल जो बोलते हैं ना हाँ, आप। स्ट्रैडल मतलब एट द मनी exact- आप सेल करते हो तो स्ट्रैडल। उसमें कैसा रहता है, आपको कभी भी देखना है कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कब बनाना है। उसका एक है, अगर इफ द मार्केट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल, है ना, पीडीएच पीडीएल Okay. के बीच में है, और जो रेंज है मार्केट की, मतलब जो पीडीएच पीडीएल का अगर हम बोलेंगे रेंज जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट लास्ट डे का है वो 1.5% या मैक्स टू मैक्स 2% से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप स्ट्रैडल बना सकते हो। नहीं तो रेंज अगर बड़ी है तो स्ट्रैंगल ही फिर बेटर रहता है, क्योंकि स्ट्रैडल कैसा है कि बहुत जल्दी स्क्यू हो जाते हैं, फटाफट जंप करेगा वो। मतलब अगर 350 विक्स बढ़ रहा है तो दैट 350 विल वेरी फास्ट बिकम 550, राइट? एंड द जो रिमेनिंग वाला 350 है वो तो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा 250 पे ही आएगा। तो यहाँ पे यू विल लूज 200, यहाँ पे यू विल गेन 100। तो स्ट्रैडल कैसा है, व्हेन दोज आर न्यू दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्ट्रैंगल्स, और फिर धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो स्ट्रैडल पे आओ, क्योंकि स्ट्रैडल का कैसा है कि आपका प्रॉफिट वो कभी 1500 दिखाएगा, बट विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स वो 1500 को ज़ीरो भी कर सकता है वो, है ना? तो वो एक रहता है, क्योंकि प्रीमियम बढ़े है ना, यू आर प्लेइंग विद बिग प्रीमियम्स, सो द बिग प्रीमियम्स मीन्स दे विल बी वेरी सेंसिटिव टू द मार्केट मूवमेंट्स। थोड़ा सा भी 100-200 पॉइंट मूव आना है तो उनको तो मूव करना ही करना है ना? तो उस स्ट्रैडल के लिए सबसे बेस्ट है कि मार्केट एक मैक्स टू मैक्स 1% रेंज के अंदर जब लॉक रहता है, मतलब 300-350 पॉइंट के अगर रेंज में बैंक निफ्टी लॉक है 3 घंटा के अराउंड, तब आप पैसे उसमें बना देते हो। या फिर दूसरा केस है कि विक्स गिरा है मस्त, विक्स मतलब 5%, 6% डाउन है, 7% डाउन है, इन दैट केस यू विल मेक मनी इन स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल इज लाइक इट इज़ लेस सेंसिटिव टू द मार्केट मूवमेंट्स, मीन्स यहाँ पे आपका जो 1% है, ये 2% का भी रेंज रहेगा, स्टिल यू कैन मेक मनी इन द स्ट्रैंगल। तो डिफरेंस ये रहेगा कि स्ट्रैडल मतलब 1-1.5% के रेंज में मैक्सिमम अगर मार्केट रहता है, और विक्स अगर फॉलिंग है, देन ओनली विल बी मेकिंग मनी, और एल्स वो बस ऊपर नीचे डांस करते रहेंगे, राइट? बट ओटीएम इज़ लाइक क्या है कि वो डांस भी करेगा तो भी ओटीएम को तो डीके करना ही है, होना ही है, वो जो फास्टर डीके होता है ओटीएम्स, राइट? तो अगर एट द मनी इफ इट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू बाय 30%, ओटीएम क्या करेगा, इट विल लूज इट्स वैल्यू बाय 50-60%, बिकॉज सेलर सब यहीं पे ज़्यादा आएंगे ना आउट ऑफ द मनी में, है ना? एट द मनी में जो आएंगे वो ग्रेजुअली आएंगे, जैसे जैसे मूव आएगा वैसे वैसे बनेंगे, बट यहाँ तो वो कॉन्फिडेंटली सेल कर पाएंगे, तो वहाँ सेलर होलसेल में बल्क में आएंगे, है ना? ओटीएम में तो ओटीएम का कभी भी आप देखोगे कि तो उसका जो रेट भी रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक 39,500 का कॉल देखोगे तो देखो कितना गिरा 39,500 का कॉल, 6%, राइट? राइट साइड में दिख रहा है ना पे, हाँ सर। ये 6% गिरा है ना, मतलब पूरा मूव, चलो डे का, अब जहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ तो ये 6% गिरा है। अब इसी को इफ़ यू टेक अ कॉल ऑफ 40,000, ये देखो कितना गिरा है, -16%. so this has fallen by 6%, ये एट द मनी है ना, राइट? एंड दिस इज एन ओटीएम, दिस हैज फॉलन बाय 17%, तो पैसा कौन ज़्यादा देगा, राइट? डेफिनेटली दिस वन विल गिव यू मनी इफ़ यू आर डिप्लॉइंग। तो व्हाट हैपन्स जनरली, मैक्सिमम जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, these guys will more or less they will always prefer strangles compared to straddles, because अगर किसी दिन स्ट्रैडल भी पैसा नहीं देता है, स्ट्रैंगल दे देगा, जस्ट बिकॉज उसका रेंज बड़ा है, राइट? एंड यू डोंट हैव टू एडजस्ट मच, बार बार एडजस्ट नहीं करना होता है। स्ट्रैडल में आपको हर 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के बाद या 200 पॉइंट्स या मूव के बाद एडजस्ट करना रहता है, शिफ्ट करना पड़ता है उसको आगे, क्योंकि एक प्रीमियम बड़ा हो जाता है ना, तो एक प्रीमियम छोटा रहता है, तो स्ट्रैडल में आपका एडजस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, है ना? तो कैसे रहता है, जिनका कैपिटल मिड रहता है, जैसे अब डिफरेंस क्या है कि हमेशा अगर आपको डाउट है तो स्ट्रैंगल वुड बी ऑलवेज प्रिफर्ड, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉस कम होगा, और आप गलत हो रहे तो लॉस कम होता है। स्ट्रैडल में आपका तभी प्रिफर्ड रहता है जब विक्स
गिर रहा होता है, डाउन है, रेंज कम है, तभी स्ट्रैडल बनाना पड़ता है. बट और स्ट्रैंगल इज़ लाइक कि वो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहेगा कि विक्स फ्लैट रहेगा, नहीं गिरेगा, तो भी वो पैसा दे देता है, क्योंकि उसका नेचुरल डीके ऑप्शन का वो तो उसको करना ही करना है एंड ऑफ द डे तक. सर ये लॉस परसेंट स्टॉप लॉस परसेंटेज इंडेक्स में 2% और स्टॉक में 3% ले सकते हैं ना सर? मतलब किसका आप स्टॉप लॉस अगर लेना है तो स्टॉप लॉस लगाना है तो इंडेक्स में नहीं किस इंडेक्स में, न्यूट्रल सिस्टम में बोलो कि डायरेक्शनल में? डायरेक्शन न्यूट्रल एंड डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शनल तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तो आपका मैक्स टू मैक्स 0.7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपका जो एंट्री और वहाँ से जो आपका एग्जिट है इंडेक्स में, है ना, क्योंकि इंडेक्स तो मैक्स टू 2-2.5% से ज़्यादा बहुत रेयरली मूव करता है ना. तो 0.7% आपका मैक्सिमम चाहिए. स्टॉक में 1% चाहिए एंट्री और स्टॉप लॉस से. आपका जो न्यूट्रल सिस्टम है, न्यूट्रल सिस्टम अगर आप जैसे कैसा रहता है कि अगर आप स्ट्रैडल बना रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, अगर आप स्ट्रैडल बना रहे हो, योर मैक्सिमम लॉस पर लॉट शुड नॉट एक्सीड 1000. मैक्सिमम एम से मैक्सिमम वो उसका जनरली 750 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए. मतलब अगर 2 लॉट का स्ट्रैडल बना रहे हो आप तो 1500 से ऊपर अगर आपका लॉस जा रहा है, मतलब कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, या फिर आपने उसको जो है गलत टाइम पे बना लिया, है ना. तो स्ट्रैडल जब भी कोई बनाता है या जब बनाता है ना, 750 पर लॉट रुपीज़ के हिसाब से आपका रिस्क डिफाइंड होता है. उसमें अगर मैनेज हो रहा है तो फिर तो वो आप बराबर जा रहे हो. बट उससे ज़्यादा लॉस अगर एक्सीड हो रहा है तो या तो एडजस्टमेंट लेट हो रही है, या फिर मार्केट में विक्स बढ़ गया, रेंज बढ़ गई एकदम से मार्केट की, तो वो नहीं मैनेज, एक दूसरे प्रीमियम्स दे आर नॉट एबल टू मैनेज वन अनदर. सो पर लॉट 750 रुपीज़ आपका लॉस होना चाहिए अगर आप स्ट्रैडल बना रहे हो, क्योंकि टारगेट भी उतना ही होता है ना. पर लॉट टारगेट भी, अगर आप 2 लॉट्स में स्ट्रैडल बनाते हो तो योर टारगेट फॉर इंट्राडे के लिए टारगेट होता है 1500 से 2000. उतना हमारा एक होता है कि 2 लॉट में आपका उतना मिलना चाहिए, तो रिस्क भी उतना ही रहता है, होना चाहिए फिर 1500 के अराउंड आपका मैक्सिमम रिस्क शुड बी देयर. तो वो समझ में आ जाता है. इसलिए कैसे स्ट्रैडल के लिए कंडीशंस जब फेवरेबल रहती है तभी बनाना पड़ता है. बाकी के टाइम अगर आपको बनाना है तो यू कैन डू अ डायरेक्शनल ट्रेड या स्ट्रैंगल बनाओ, वो थोड़ा बेटर प्रेफर्ड रहता है इंट्राडे के लिए, है ना. ओके, या थैंक यू. ओके थैंक यू सर. यस अमित जी. हेलो. हाँ बोलिए अमित जी. सर मैं कैसा है कि बिगनर हूँ, मेरा क्वेश्चन भी बहुत एज अ लेमैन लैंग्वेज हाँ क्वेश्चन है. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सर ये जो स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल ऑल है, ये सब मैं पूछूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे समझ में आता भी नहीं है. नहीं कोई दिक्कत नहीं. सर ये जब हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो चार्ट कौन सा यूज करना है, स्पॉट मार्केट का, ऑप्शन का, किसका यूज करना है, और वॉल्यूम किसका देखना होता है? अच्छा, अभी आप अगर ट्रेडिंग व्यू के यूज़ करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के स्पॉट में भी अभी वॉल्यूम आ गया है ना. तो ट्रेडिंग व्यू का जो तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप वो सबसे बेस्ट है, उसी को यूज़ कीजिए. तो स्पॉट का मार्केट देखना है बेसिकली, राइट? स्पॉट का कैसे है, स्पॉट के लेवल्स हमेशा, फ्यूचर कैसा हर महीने चेंज होते रहता है, राइट. तो ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस नहीं देखना है, सिर्फ स्पॉट का देखना है, राइट? सिर्फ स्पॉट का देखना है. ऑप्शन में सिर्फ हमें ये देखना पड़ता है कि उसका पोजीशन का है, 50 EMA के नीचे है कि प्रीवियस डे वीआर के नीचे ऊपर है, बस दैट्स इट. जो भी आपका और स्टॉप टारगेट लॉस टेक रहेगा, प्रॉफिट जो सब आपका चार्ट से होता है. ऑप्शन से कभी भी आपका टारगेट डिसाइड हो, कि ऑप्शन से आपको कभी भी आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना. आप बोलोगे कि Okay. जैसे स्पॉट में हम क्वांटिफाई कर सकते हैं ना, यहाँ से ब्रेक होगा तो हमें पता है डे लो टारगेट है, बराबर. बट Okay. ऑप्शन में कैसा रहेगा कि आप यहाँ करोगे तो बहुत बार वो डे लो के नीचे चले जाएगा, है ना. तो उस केस में कैसे ठीक डे है. लो रखेंगे, क्योंकि उसमें डीके का कंपोनेंट रहता है, वो कभी कभी ज़्यादा गिरेगा या थोड़ा. अभी जैसे इन कॉल ऑप्शंस का अभी देखेंगे, है ना, कॉल ऑप्शन अभी देखो. अब ये डे लो उनका ये था यहाँ पे, ये विच इज 400 के अराउंड. ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट. मेरे और भी क्वेश्चन है. आपने बोला स्पॉट का वॉल्यूम और प्राइस स्पॉट से करना है, मैं समझ गया. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी हम कॉल या पुट बाय करते हैं तो एटीएम रहना चाहिए, आईटीएम या ओटीएम रहना चाहिए? बाइंग इसमें बायर हूं. बाइंग हमेशा एट द मनी. आईटीएम तभी करना चाहिए जब आपने एक पैसा बिल्डअप कर लिया, फिर आप आईटीएम बाय करो. मतलब 3-4 महीने आपका ऑप्शन बाइंग से पैसा कैपिटल अच्छा बिल्डअप हो गया, फिर आप आईटीएम में खेलो.
इन द मनी में। तो एज अ लेमैन लैंग्वेज ऑप्शन बायर को एटीएम पे फोकस करना चाहिए, राइट सर? एटीएम और इन द मनी, उसके लिए बस ये दो ही चीज़ है। और अगर हम मंथली कर रहा है ना, जैसे वीकली ऑप्शन तो हाँ। एट द मनी, इन द मनी, अगर आप मंथली ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो तो फिर आपका ओके 500 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी, मतलब जो भी बिग अच्छा, राउंड मंथली नंबर के है। लिए हाँ, जैसे कि अगर आप 39,500 पे, जो सबसे बिग राउंड नंबर ऊपर के साइड पे क्या है, 40,000 है, तो वो बाय करो। अब 39,500 है तो अच्छा, नीचे के लिए बिग राउंड नंबर क्या है, 39,000, वो बाय कर सकते हैं, है ना। तो जो भी और सर थाउजेंड्स ये के होते हैं मंथली हाँ। में, वो बाय करना है। ओके, तो बेसिकली ज्यादा करके एटीएम पे फोकस करना है वीकली अगर एक्सपायरी ले रहे हैं तो एटीएम और आईटीएम, और अगर मंथली का ले रहे हैं तो ओटीएम का ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? वन पर मतलब 500 पॉइंट जो भी बड़ा नंबर है वो ओटीएम वाला मंथली के लिए। स्पॉट प्राइस से 500 पॉइंट ज्यादा 500 है। पॉइंट्स दूर जो भी बिग राउंड नंबर है, कि मंथली में आपको लिक्विडिटी उन्हीं में मिलती है ना। मंथली में आपको Okay. 39,200 में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मंथली में 39,000, 39,500, 40,000, ऐसे 500 पॉइंट्स में लिक्विडिटी मिलती है सिर्फ, है ना। और सर ये जो डेल्टा आपने बताया 0.30 सी के केस में रहना चाहिए, तो पुट के केस में भी वही रहना चाहिए 0.30? एट द मनी लोगे तो वैसे वो 0.5 डेल्टा है, तो 0.3 मतलब एट द मनी करोगे तो डेल्टा देने की जरूरत ही नहीं है ना, राइट। Okay, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक आपका है। 0.3 के ऊपर चले जाता है। ठीक है। सर ये जो विक्स का आपने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो सर ये आप प्राइस की बात करते हो या परसेंटेज की बात करते नहीं, हो? विक्स हमेशा प्राइस का तभी मैटर करता है जब 19 के ऊपर चले जाता है। 19 मतलब एक ऐसा ओवरऑल लेवल, अगर 19 के ऊपर विक्स जा रहा है, जैसे अभी 19.3 है, तो वैसे मार्केट में आपको गैप ज़्यादा दिखेंगे, ऐसे मार्केट में रेंजेस बड़ी रहेगी और वॉलेटिलिटी आएगी, है ना। तो ये तो जो 20 और 19 है, ये प्राइस है कि प्राइस, परसेंटेज है ये सर? प्राइस है 19 के ऊपर, ओके, मतलब प्राइस प्राइस है। है। परसेंटेज मतलब इंट्राडे, Right. इंट्राडे पे अभी जैसे फिर अभी 19 के ऊपर है, बट आज के दिन इंट्राडे Okay. के बेसिस पे विक्स का इम्पैक्ट आपको दिखेगा तभी जब विक्स 3% से ज़्यादा राइज हो रहा है या 3% से ज़्यादा फॉल हो रहा है इंट्राडे बेसिस पे। ओके आज जो है अगर वो Okay. 1.5% फॉल हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट, विक्स का इम्पैक्ट नहीं है आज मार्केट में, क्योंकि वो फ्लैट है ओके। है ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो सर ये विक्स अगर 20 से डाउन चल रहा है तो उस पे कॉल ऊपर जाएगा या पुट ऊपर जाएगा, नहीं कैसा वैसा रहेगा नहीं है। मतलब? देखो आपका कैसा रहता है कि 19 मतलब वो रेंज है, अगर 90 अब विक्स अगर 15-16 हो गया, वो कैसा रहेगा कि वो एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का रेंज थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब मार्केट में साइडवेज डेज ज़्यादा मिलेंगे, गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे ज़्यादा, है ना। ओके तो वो रहता है सिनेरियो आपका। ऐसे नहीं, ऑप्शन बाइंग जो सेटअप के हिसाब से है, वो बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर विक्स ऐसा नहीं है कि 15-16 पे है तो विक्स तभी भी तो 3% के ऊपर राइज हो ही सकता है वो, है ना। 15 रुपए के लिए 3% क्या है, कुछ भी नहीं है। 15 अगर जब जाता है वैल्यू, 3% इज नथिंग, राइट। अभी 0.25 मतलब 1.5% हो गया, 0.5 मतलब 3% हो जाता है वो। तो उसमें जो है आपका विक्स राइजिंग जब 3% से ज़्यादा ऊपर नीचे रहेगा तब वो इंट्राडे इफेक्ट तभी आता है ना। बाकी रेंज डिटरमाइन करता है जो नंबर रहता है। अगर 19 विक्स अब 19 एंड अबव, इट मीन्स गैप्स ज़्यादा होंगे और रेंज मार्केट की एक्सपेक्टेड है बड़ी होगी। अगर 19 के बिलो जा रहा है 17, 16, 15, ये मतलब है कि इसको बोला जाता है स्टेबल मार्केट। मतलब ये मार्केट तभी मिलते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रहते हैं, राइट। जब आपके मार्केट ओके एक बुलिश रहते ऑल टाइम है। तो देखो अभी जब विक्स जब अपना, अगर हम देखोगे आपका वीकली चार्ट इसका, है ना, ये बैंक निफ्टी का, और ये जो विक्स का अगर आप देखोगे तो अपना जो विक्स है अभी, जब मार्केट यहाँ पे, ये देखिए ये पहुंचा था 15 के अराउंड। कब गया था 15 के अराउंड? जब सितंबर अपना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये विक्स गिरा है ना, 16 तक आया था वो। कब गया था? जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया था। उसके बाद वापस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई मारा है, तब भी विक्स अराउंड 14-15 तक आया। तो वो एक तरीके से जब मार्केट एक बुलिश फेज में रहता है, ऑल टाइम हाई के पास जाता है या हायर लो वीकली बनाता है, तब विक्स आपका मतलब 17, 615, 16 आता है। मतलब वो एक तरीके से कि इट इज़ अ बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं वैसे मार्केट में। और जब भी वोलेटिलिटी आती है, वोलेटिलिटी तो सेलर लेके आएगा क्योंकि मार्केट को अब गिरा रहे वो लोग या वोलेटिलिटी आ रही है, उस टाइम फिर ये विक्स राइज मारेगा। तो वो पता है कि मार्केट की स्टेबिलिटी जो है ना, ऊपर जाने की। लॉन्ग टर्म में तो सारे मार्केट्स ऊपर जाएंगे, राइट, बट टेम्पररी शॉर्ट टर्म में जो स्टेबिलिटी है कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए, वो इम्पैक्ट हो रही है मार्केट की।
जहाँ क्योंकि सेलिंग आ रही है तो उसके वजह से क्या है कि वोलेटिलिटी मतलब एक है कि सेलर भी आ रहा है अभी स्ट्रांगली और बायर भी नीचे बैठा है, तो उसके वजह से क्या मार्केट रेंज में वोलेटाइल होगा। जैसे अब यहाँ पे ये देखोगे तो अभी पूरा 2022 ये पूरा साल क्या किया उसने, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब यहाँ 5-6 बार अप डाउन किया उसने पूरे 8-9 महीने में। गया कुछ नहीं, Okay. रिटर्न कुछ नहीं दिया उसने, है ना। हम्म, 2022 जब से हम्म, स्टार्ट हुआ और जब से अपने रिटर्न किसी को ज़्यादा नहीं मिला है इन्वेस्टिंग, जो जनवरी 1 2022 से अभी तक, बस उसने क्या किया 10 महीना सिर्फ ऊपर नीचे उसने वोलेटिलिटी मारी है, दैट्स इट। तो वो जो रहता है विक्स क्या बोलता है कि आपका जब भी विक्स अगर राइजिंग है तो वो चीज़ रहती है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, और मैक्सिमम टाइम जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो वो एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अनस्टेबल हो रहा है, और मार्केट अनस्टेबल हो रहा है इसका मीनिंग है कि उसमें अगर ये अनस्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक रही तो क्रैश आएगा फिर, राइट। तो ओके। तो जहाँ पे कोविड के पहले यहाँ पे जैसे अब ये 2019 के मार्केट देखो कैसा रहा मार्केट, 2019 में भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब पूरा एकदम स्टेबल नहीं, एक ऐसा स्मूथली नहीं मूव हुआ, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे। अब ये अनस्टेबिलिटी थी, तो यहाँ पे जो है विक्स आप देखोगे अगर 2019 वगैरह में, राइट, तो बार बार यहाँ पे 28 तक पहुँच गया था, 30 तक पहुँच गया, कोविड के पहले की बात है ना, 30 तक 28 तक कंटिन्यूस राइजिंग है। तो साइंस दिखा रहा है कि अनस्टेबिलिटी के साइंस दिखा रहा है, विक्स बार बार 20 के ऊपर जा रहा है, 20 के ऊपर जा रहा है, 20 के ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए फिर कोई भी एक इवेंट आता है भले वो नेगेटिव रहे, फिर वो मार्केट को फिर एकदम क्रैश हो जाता है। तो सिमिलरली हमारा अभी का मार्केट भी So बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि विक्स का अगर परसेंटेज हाई है तो मार्केट अनस्टेबल है, राइट? यस, अनस्टेबल मतलब 19 के ऊपर Okay. अनस्टेबल है, परसेंटेज हाई तो इंट्राडे पे इम्पैक्ट करेगा सिर्फ। 19 के ऊपर विक्स अगर Okay. आपका रह रहा है मार्केट में, इट्स सेइंग कि इट इज़ रिफ्लेक्टिंग कि वो मार्केट अनस्टेबल मार्केट है, और वो कोई भी बैड न्यूज़ आएगी वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार्केट में सेल ऑफ आता है। जैसे यहाँ पे अब ये 2022 में जब अपना रशिया यूक्रेन है तो वो एकदम कंटिन्यूस 2-3 हफ्ता गंदा सेल ऑफ मार्केट में कंटिन्यूस चल रहा था मार्च में, राइट। तो जो सेल ऑफ आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। जो विक्स अभी मार्केट ऐसी कि अभी विक्स 20-25 के अराउंड है। अब ये मार्केट अगर विक्स राइजिंग अगर रहेगा और तो ये अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, विक्स अगर बढ़ रहा है, तो ये जो अपमूव है ये वापस डंप हो जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। तो सर ये विक्स जो है माइनस में भी रहता है प्लस में रहता है, एक बार फिर से समझिए सर, माइनस में क्या मतलब होता है और प्लस में रहता है उसका क्या मतलब? जस्ट माइनस मतलब कि वो इंट्राडे बेसिस पे रहता है, वो उसका आपका कुछ नहीं, ओके उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट माइनस प्लस से नहीं होता। लॉन्ग टर्म सिर्फ विक्स का वैल्यू क्या है, 19 से ऊपर है कि 19 के नीचे है, राइट, वो हफ्ते है। अभी प्लस जो इंट्राडे प्लस में रहता है मतलब वो उस दिन वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट है कि ज़्यादा रहेगी, तो ऑप्शन बायर्स उस दिन ज़्यादा मतलब उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। अगर विक्स गिर रहा है, विक्स गिर रहा है मतलब वो एक अपसाइड मार्केट मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ती है। जैसे अगर विक्स गिर रहा है तो वो क्या हिंट करता है कि स्टेबल, और कभी भी मार्केट स्टेबल करेगा तो वो एक ही जगह जाएगा ऊपर, है ना। कभी भी मार्केट स्टेबल रहेगा तो वो बुलिश ही जाएगा फिर, क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब वही है कि बायर फिर कॉन्फिडेंटली आएंगे ना, राइट, और पैसा निकालेंगे नहीं। तो स्टेबिलिटी मीन्स मार्केट में अपसाइड बुलिश मूव्स ज़्यादा आएंगे, है ना। जब भी विक्स गिर रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर में रहता है, तो यू विल सी कि कंटिन्यूस मार्केट एक बुल रन में जाता है, और जब भी वो बुल रन ख़त्म होता है तो आपका जो विक्स है वो वॉबल होने लग जाता है, वो 20 के ऊपर आने लग जाता है। और वो 20 के ऊपर आने लग रहा है मतलब ये कि ये बुल रन का अभी थोड़ा पॉज हो गया है, मतलब टेम्पररी। इंट्राडे में सिर्फ वो उस दिन के लिए आपको दिखाता है कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग उस दिन के लिए हमें रेंज बढ़ी है कि नहीं। तो अगर विक्स बढ़ रहा है तो ऑन दैट डे इफ़ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, मतलब वो एक ऑप्शन डबल टिबल भी हो जाते हैं, है ना, वैसा वाला। ओके सर, ये जब भी वीडियो है, स्टॉक मैंने हम लोग 2 वीडियो 20-20 मिनट के बनाए, वो देख लेना। विक्स के मैंने वीडियोस बनाए, प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको दिख जाएगा उसमें यूट्यूब पे। श्योर सर, ये जो स्टॉक ऑप्शन में मुझे ट्रेडिंग करना है इंट्राडे के लिए, तो जो स्टॉक मैं सेलेक्ट करूंगा सर, वो मिड कैप के रहेंगे, स्मॉल कैप के रहेंगे या लार्ज कैप के रहेंगे? अभी तो सिर्फ जो लार्ज कैप ही करो, मिड कैप में मत जाओ। मिड कैप के प्राइस एक्शन अनरिलायबल होते हैं। देखो जो भी स्टॉक सिर्फ लार्ज कैप बहुत इजीली मैनिपुलेट, उनको मूव करने के लिए ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगते ना मिड कैप्स के।
एक दो ओके बड़े प्लेयर आके ओके उनको ऐसी कुछ भी हिला सकते हैं, है ना। तो तो सिर्फ लार्ज कैप आप बोल रहे ट्रेडिंग करनी है ऑब्वियसली लार्ज कैप है, क्योंकि आपको लेवरेज मिलता है ना, राइट। हो और ट्रेडिंग में कैसा है कि कैपिटल में आपको 50,000 का कैपिटल है, आपको 5 टाइम्स लेवरेज, आपको 2.5 लाख का आपके पास ऐसे ही होगा। किसी के पास 10 लाख है, उसको लेवरेज मिल के, सब लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है ना, इसलिए तो ट्रेडिंग में कम कैपिटल में पैसा ज़्यादा आरओआई मिलता है, राइट। तो लार्ज कैप में ही ओके रहो, वहाँ आपको लेवरेज भी अच्छा, मार्जिन मतलब वो लेवरेज भी अच्छा मिलता है, और आपको प्राइस एक्शन वहाँ पे एक क्लियर और रिलायबल होता है। आप वहाँ कहीं जाओगे ऐसे ओके मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वो कैसा है कि वो कुछ भी मूव आते हैं, मतलब कुछ, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, वो अपने मन से कुछ भी करेंगे वो, तो उनका और जो सर है कोई जैसे मैटर मैं नहीं। आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू चलो सो मच लास्ट सर। जैसे क्वेश्चन मैं फिर सर है ना, ऑप्शन, लास्ट क्वेरी। हाँ सर सर ये जैसे मैंने ये ऑप्शन बायर हूँ फॉर एग्जांपल इंडेक्स का, तो WRC तो सर डेली नहीं बनता है सर ना, फॉर एग्जांपल, तो उस समय 5 कैसे मिनट पे ट्रेड करूँ काम फिर करना मैं? पड़ता है आपको। ऑप्शन बाइंग के सेटअप वैसे भी वही मैंने बोला, रोज नहीं मिलते हैं आपको। अगर तो 5 मिनट्स के हाँ, सेटअप में? हाँ ऑप्शन बाइंग हमेशा 5 मिनट्स में ही करनी होती है आपको। जो है ऑप्शन बाइंग, अगर हम 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 14 डेज मैक्सिमम आपको एक अच्छे ऑप्शन बाइंग, 12 से 14 दिन ही ऑप्शन बाइंग के अच्छे सेटअप मिलेंगे, राइट। बाकी के दिन जो ओके रहेंगे वो सेलर्स के लिए रहेंगे। जैसे साइडवेज जब मार्केट जाएगा, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो बनाते हैं वो उनके लिए भी तो मार्केट को कुछ देना पड़ेगा ना, राइट। तो ओके इसमें से 10 डेज यू कैन सी, 8 to 10 days आर सोली न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए। वो उस दिन वो उनको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे मार्केट पैसा देगा। और ये बाकी के जो रहेंगे वॉलेटिलिटी वाले दिन, जो रेस्ट 12 से 14 दिन रहेंगे, वो पूरे ऑप्शन बायर्स के रहेंगे। तो उसी के हिसाब से वही है ना कि दो अलग अलग टाइप के मार्केट के फेजेस रहते हैं जिनको ऑप्शंस में करना है। अब नहीं है फेज, सेलिंग है, मार्केट साइडवेज है, उस दिन बाइंग का ज़बरदस्ती सेटअप देखोगे तो फंस जाओगे, है ना, अननेसेसरी लॉस करके बैठ जाओगे वहाँ पे। सर ये जो आपका कोर्स मैं परचेस करूंगा, तो सर इसमें क्या पूरा ऑप्शन के बारे में सिखाया जाएगा, क्लासेस लगेंगे, कैसे ऑप्शन क्या हाँ, होता है, कैसे ऑप्शंस का काम जो, करता है यस यस बेसिक? यस, वो सारा हम लोग कवर कर लेते हैं। जो भी आपका ऑप्शन रिलेटेड, जो भी प्राइस एक्शन आपको लगता है, ऑप्शन डायरेक्शनल ट्रेड या में न्यूट्रल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने के लिए भी वो कवर हो जाता है। जैसे मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल मैं एकदम बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे ऑप्शन कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्या करना होता है, कैसे है यस यस, डोंट वरी, बिगनर्स, रहता है यस बिगनर्स तो वो आती है हमारे पास। आपका देखो मेन चीज़ है हमारा, उसमें आपको यू डोंट हैव टू वरी कि व्हाट इज़ योर लेवल, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, है ना। उस लेवल पे आपको वहाँ पे गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इफ़ यू आर बिगनर ओके ऑल्सो, तो हमें 1 महीना ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, दैट्स इट। बाकी कोई उसमें कोई, हमें कोई टर्मिनोलॉजी थोड़ी कोई रट्टा मारनी है, राइट, या हमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग सीखना है, राइट। तो और सर ये आपके लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे 3 मंथ चलेंगे, राइट सर? हाँ, 2 मंथ्स रहता है जो कंप्लीट प्रोडक्शन रहता है, 2 मंथ्स उनका जो रहता है, हम लोग कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ओके 2 मंथ्स कंटिन्यूस चलता रहता है। चले, ठीक है सर, थैंक थैंक यू, यू सो मच। वेलकम। चलो, तो इट्स 10:30 ऑलरेडी, अभी 1.5 घंटा हो गया है, तो वी विल कंक्लूड द सेशन ओवर हियर, है ना। जिनको भी नहीं क्वेरीज क्या है, तो टेलीग्राम पे आपका जो है कि यहाँ पे यू कैन आस्क योर क्वेरी, राइट, ये आईडी दी है, वहाँ पे आप क्वेरी पूछिए। और वहाँ पे उनको मैं प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ जो चार्ट्स और ट्रेड लॉग्स भी शेयर करते हैं, बिकॉज मुझे भी पता होना चाहिए कि वो बंदा बस टाइम पास कर रहा है या फिर ही इज़ ऑल्सो रेगुलर चार्ट शेयरिंग है उसमें। तो वो जो कर रहे हो वहाँ पे इन अ वे आप यहाँ पे भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेटली सारे के डाउट्स लेना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम हो सके, और जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं उस पर। जैसे मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन बाइंग पे डाउट्स आते हैं, विक्स पे डाउट आते हैं, है ना, क्योंकि वो हम टर्म्स यूज़ करते हैं सेटअप पे, या बेस बिल्डिंग पे डाउट आता है। तो ये मेजर मेजर जो कंसर्न्स है उसमें, या स्ट्रक्चर पे डाउट है। आज सरप्राइजिंगली स्ट्रक्चर पे कोई डाउट आया नहीं, बट जनरली स्ट्रक्चर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर आपको मतलब क्वेरीज आनी चाहिए। वो उसके बिना कोई मतलब आपको प्राइस एक्शन वो क्लियर ही नहीं होगा। बट मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो प्राइस एक्शन में क्या शॉर्टकट मारते हैं, जो गेम चेंजर में मैंने देखा है कि बस हाँ, बस ये बेस बिल्डिंग हो गया, कर लिया, क्या है। बट बेस बिल्डिंग के रोज सेटअप नहीं मिलेंगे, तो हमें उस दिन फेक रेंज एक्सपेंशन, जैसे या आज जैसे ये इसने दिया है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो ये हमारा सेल ट्रेड है कि
वो ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक क्यों कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर रीडिंग है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ रहेगी एंड टू इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। जो REBB है वो तो एक फार्मूला है ना, तो वो फार्मूला है, वो एक सिस्टम है, बट वो भी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, राइट। वो भी एक प्राइस एक्शन के प्राइस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि उसमें क्या है वहाँ पे क्या। अब जो आज जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया भी था, वॉल्यूम नहीं दिया था, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ है आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो वहाँ पे कितना स्पेस है, वहाँ पे मार्केट ने वॉल्यूम दे रहा है तो स्टॉप लॉस खाता है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बहुत मैटर करती है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 5 मिनट यूज़ करना है, 15 मिनट यूज़ करना है। ये एक चीज़ बताएगी मार्केट में हमेशा, एंड वो सबसे क्रूशल चीज़ है विच इज़ द स्ट्रक्चर रीडिंग। ये एक बार आ गया तो कैसा भी मार्केट रहे, है ना, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो रहता है एक हमारा अबव एवरेज ही रहेगा, राइट। बिकॉज आप मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं इसमें, है ना। तो इस पे फोकस कीजिए, अदर्स के लिए भी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को हम लोग मतलब जो कंप्लीट प्राइडिक्शन है उसमें नियरली 3 आवर्स लेते हैं, फाउंडेशन में भी कवर होता है, एडवांस में भी, क्योंकि ये क्रक्स है मार्केट का। ये जो है दिस इज़ व्हाट इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है इसी के बेसिस पे वो ट्रैप्स ले करते हैं, और इसी के बेसिस पे सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है वो है। तो ये आपका जो है नंबर गेम चेंजर में भी हमने उसको कवर किया एक टॉपिक में, विच इज़ 3rd टॉपिक। इसको बार बार देखिए और इसी को प्रैक्टिस कीजिए, एंड ये सबसे क्रूशियल। ये एक बार आ गया तो मार्केट विल बिकम रिलेटिवली वेरी वेरी काइंड ऑफ मच लॉजिकल एंड ईजियर टू ट्रेड। मतलब लॉस होना तो प्रॉफिट तो गारंटेड बनना चालू हो जाता है फिर, है ना। बट हाँ, स्टार्टिंग में जैसे स्किल बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, बाद में इंक्रीज होगा, बट प्रॉफिट बनना अपना चर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो ये 3 है, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम। इसका मैंने लिखा भी है 3 लेवल्स ऑफ प्राइस एक्शन, है ना। बाकी जो सेटअप है ट्रेडिंग सेटअप वो फॉर्मुलेज होते हैं, बट उसके पीछे का ये कंसेप्ट समझ में आ गया, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट विल चेंज द वे वी लुक एट द मार्केट्स। उसके हिसाब से आपका डिसीजन क्लियर होता है, ट्रेड लेना है नहीं लेना, वो एकदम क्लियर हो जाता है क्या करना है ना। ठीक, चलो तो विद दिस विल एंड। अभी जो है टिल द टाइम विक्स इज अबाउ 19, सो मार्केट्स में ऐसे गैप्स इस तरीके के मूव्स आते ही रहेंगे, है ना। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन आप कैरी कर रहे हो तो विद प्रॉपर हेजेस, नहीं तो नेकेड कुछ भी मत कैरी कीजिए, बिकॉज 1 बैड ट्रेड फिर आपका कैपिटल वहाँ ख़त्म कर देगा, है ना। सो लाइव सेशन गेम चेंजर की जो रहेंगे विल बी नेक्स्ट वेडनेसडे एंड थर्सडे, है ना। सो एक एक्सपायरी भी कवर होंगे, तो 12 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर नेक्स्ट अपने लाइव सेशन रहेंगे। 2 अपने हो गए हैं अभी इस मंथ के अक्टूबर के 3rd एंड 4th अक्टूबर को लिया है। वहाँ पे हमने अराउंड आई गेस 5 ट्रेड्स लिए, उसमें से 4 सक्सेसफुल रहे, एक हमारा काम नहीं किया। 12 और 13 को अपने नेक्स्ट लाइव सेशन रहेंगे, तो दैट यू कैन अटेंड वेडनेसडे एंड थर्सडे। उसके बाद जो है फिर 5th और 6th लाइव सेशन अपने जो रहेंगे, फिर हम शायद 20 के आसपास दिवाली के पहले कर लेंगे, क्योंकि दिवाली वीक में तो देयर वोंट बी एनी लाइव सेशन, है ना। सब लोग अपना बिजी रहेंगे, तो उसके दिवाली के पहले रैप अप कर लेंगे अक्टूबर सीरीज़ के लाइव सेशन से, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, होप यू लर्न समथिंग मीनिंगफुल टुडे। See you next week then. Bye bye.